Good morning. Very good morning. Namaskar. Dear students, how are you? कैसे हैं आप सब लोग? कैसा बीत रहा है आपका लॉकडाउन पीरियड? Hope everything is fine at your end. You are keeping safe and healthy. So now today is 2nd May, Saturday, and today we are going to study and understand very important chapter which I think everybody was keeping in the mind that we should really go and we should really understand the host pathogen interaction. And you all know host pathogen interaction is the most important component of plant pathology. So therefore I am taking this chapter in different parts. Now the part 1, first we will be trying to understand at the general level what is the host pathogen interaction. Since we are also going to study about the bacterial aspects, so bacteria we will be talking about the some examples of the fungi also. As such, what is happening in the host pathogen interaction, we will be dealing all those aspects. Okay, so if you are able to understand, I think I will try my best to understand. Hope you might have heard the last lecture. Actually, in the last lecture we had studied about some secretion system. Purposely I had given that because so that we can continue with the host pathogen interaction very comfortably, because some of the terms and terminologies will come which will really need a good understanding of the subject. Now when we are trying to understand what is the host plant pathogen interaction, what is the host why it is so important, because it develops the disease. It present, and these plant diseases which is a very important aspect, and therefore we are here as a plant pathologist and our job is to really manage the diseases. So if we understand the plant and pathogen interaction, that how crucial it is for developing sustainable agriculture, because whatever crops you are growing, they are suffering from diseases, and those diseases are of the different microorganisms, fungi, nematodes, then virus, bacteria, mycoplasma. So all different microorganisms, they are causing the diseases, and diseases, that is some abnormality or the physiological and biochemical abnormality, or it has caused some plants to behave very differently what is in the normal course. So there is some interaction between the host and pathogen, and therefore the diseases appear. So plant, but when the host and in the evolution process, जब हम ये सब पढ़ रहे थे कि जब हम पढ़ रहे हैं कि होस्ट और पैथोजन जब साथ में इंटरेक्ट कर रहे हैं, तो देयर वाज अ को इवोल्यूशन ऑल्सो. एक हिस्ट्री उसकी भी है कि कैसे होस्ट और पैथोजन दोनों एक साथ इवॉल्व हुए. व्हेन दे वर इवॉल्विंग, तो प्लांट्स ने भी अपने एक इम्यून सिस्टम्स डेवलप किए. क्यों डेवलप किए? सो दैट दे कैन रेजिस्ट द पोटेंशियल अटैक बाय माइक्रोबियल पैथोजेंस, बिकॉज दे ऑल्सो डोंट वांट टू गेट द डिजीज. So they, in the normal course, they are the healthy, they want to remain healthy. So as a plant system, जो उसका cellular system है, चूँकि वो mobile नहीं है, plants are not mobile, no? So they lack the mobile defender systems. So therefore they rely on what? The innate immunity of each cell. सो इनकी जो कमज़ोरी है कि वो मूव नहीं कर सकता, एम्यूनिशंस से ले जा सकता, आर्म्स से ले जा सकता, वेपन्स से ले जा सकता अपनी एनिमी के अगेंस्ट. तो नेचर में देयर इज़ अ इनेट इम्यूनिटी इन ईच सेल, जिस इम्यूनिटी को वो लोग प्रयोग कर लेते हैं सिस्टमिक सिग्नल्स के लिए, जो कि इन्फेक्शन साइट्स को वो लोग भेज सकते हैं. So this is such an important, interesting subject, that how the pathogen and the host have evolved together, and how the immunity system has developed, how the pathogen has learned to overcome those weapons also. So this is all the host pathogen interaction. So हमको ये सब एक हर स्टेप पे पढ़ना है. The perception of the pathogen is achieved through receptors. कैसे हम perceive करते पैथोजन को? The plant, how it is perceiving? It is through the receptors. एक सर्विलेंस सिस्टम है which is capable of recognizing both conserved molecular patterns and the specific elicited proteins. तो इसमें प्लांट सिस्टम में ऐसा नहीं है कि भी वो they cannot recognize, they will recognize whether this is a कंजर्व मॉलिकुलर पैटर्न, मतलब कंजर्व मॉलिकुलर पैटर्न मतलब एक जनरल पैटर्न आ रहा है जो कि नॉर्मल आ रहा है, या वो स्पेसिफिक इफेक्टिव प्रोटीन्स लेके आ रहा है विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिजीज, एंड देयरफॉर द प्लांट हैज़ टू गिव अ स्पेशल डिफेंस.
सो होस्ट पैथोजन इंटरेक्शन में हमें ये सब चीज़ें समझनी पड़ेंगी कि व्हाट आर द इफेक्टर्स, हाउ द इफेक्टर्स आर कमिंग टू द होस्ट, हाउ द होस्ट इज रिकॉग्नाइजिंग देम. सो द प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स इज रिफर्ड एज द pathogen associated molecular pattern, and PTI, the pathogen associated molecular pattern triggered immunity, and therefore it must evolve to recognize the common features of the microbial pathogens. तो ये जब इम्यूनिटी सिस्टम डेवलप होता है किस बेसिस पे, कि जब वो पैथोजन के मॉलिकुलर पैटर्न को रिकॉग्नाइज कर लेगा. एट द सेम टाइम पैथोजेंस acquired the ability to deliver effector proteins to the, जब ये सब हो रहा है, जब हमारे होस्ट में इतना मैकेनिज्म डेवलप हो रहा है कि वो फाइट कर सकता है अपने पैथोजेंस के, तो पैथोजेंस ने भी एक्वायर करी एबिलिटी किसकी, किस तरह से इफेक्टिव प्रोटीन्स. क्योंकि देखिए जब होस्ट इन्फेक्ट हो रहा था, इसका मतलब पैथोजन में कुछ सिस्टम है तभी तो हो रहा है ना. पैथोजन जो कि बैक्टीरिया इतना माइक्रोस्कोपिक है, आंख से दिखता नहीं, वो कैसे अपने, हम मतलब इमेजिन करो कैसे वो अपनी डिजीज़ कॉज कर रहा है, how it is coming to the host. So pathogens have acquired the ability to deliver effector proteins. ये effector proteins to the plant system कैसे, plant system के, अब मैं ये सब के, इन सब के जो terms आ रहे हैं, इन सब की definitions आप लोगों को एक अलग उसमें बताऊंगी. So to the plant systems to suppress the PTI, allowing the pathogen to grow and disease. So in response to this, plants क्या करते हैं, सर्विलेंस प्रोटीन्स मीन्स उनके आर प्रोटीन्स होते हैं जो कि डायरेक्टली और इनडायरेक्टली मॉनिटर करते हैं प्रेजेंस ऑफ पैथोजन को, इफेक्टिव पैथोजन को, ठीक है, विच लीड्स टू द एक्टिवेशन ऑफ डिफेंस कैस्केड. सो दिस इज एब्सोल्युटली वेरी फाइन बिकॉज वी कैन अंडरस्टैंड इट वेरी नाइसली, बिकॉज अभी इन सब की जो इनसाइट डिस्कवरी हुई है वो मॉलिकुलर बेसिस पे होस्ट पैथोजन इंटरेक्शन की हुई है, and it is changing as the way we think about pathogenesis and the treatment of various plant diseases. So इन सब को पढ़ने के लिए हमें एक इंटीग्रेटेड अप्रोच डेवलप करनी पड़ती है, जिसमें कि हम एक कंबाइंड नॉलेज of the molecular basis of defense system used by the plant and the assault system used by the pathogen, इस सब को पूरे डिज़ाइनिंग को पढ़ना पड़ता है. और ये किस तरह से हुआ है इसको हमें समझने की बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये सेसाइल ऑर्गेनिजम्स, यानी कि ये लोग मूव नहीं कर सकते हैं, प्लांट्स जो हैं मूव नहीं कर सकते हैं, वो केवल जो बैक्टीरिया भी है वो भी सेसाइल, मतलब उसके ऐसे लोकोमोटरी और लोकोमोशन सिस्टम इस तरह से नहीं ना, तो वो प्लांट सिस्टम को क्या है पूरी तरह से किसके लिए एक्सप्लॉइट करता है, फूड और शेल्टर के लिए. और देयरफॉर देयर इज अ वाइड रेंज ऑफ पैरासाइट्स, जैसे वायरसेस है, बैक्टीरिया है, फंजाई है, नेमेटोड्स है, इंसेक्ट्स हैं, एंड इवन अदर प्लांट्स हम कहते हैं ना, एंजियोस्पर्मिक पैरासाइट्स हैं. सो ये सब डेवलप हुए हैं. इस लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ कोएवोल्यूशन में हमने ये सब पढ़ लिया, जो कि अभी मैं आप लोगों को बता रही थी कि कैसे इन लोगों ने रिमार्केबली डेवलप किया है, और इन्होंने रेंज ऑफ कॉन्स्टिट्यूटिव एंड इंड्यूसिबल बायोकेमिकल एंड मॉलिकुलर मैकेनिज्म डेवलप किए हैं, जो कि बोथ लॉन्ग टर्म के लिए और शॉर्ट टर्म डिफेंस रिस्पॉन्स में काम आते हैं. these systems, they work both for the short small period and for the longer period. मतलब छोटे मतलब मूवमेंट में स्पॉन्टेनियसली कैसे करना है और लॉन्ग टाइम के लिए प्लांट में कैसे वो सिस्टम चलेगा. सो देयरफॉर अ सिनर्जिस्टिक इफेक्ट of many stresses represents the primary. We also know कि जो क्रॉप लॉस होता है वो कई मतलब कई रीजन से होता है. सो उन सब का एक इंटीग्रेटेड अप्रोच हमें समझना है. द एप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स ऑफ प्लांट इमर्जेस फ्रॉम द परसेप्शन ऑफ एन एक्स्ट्रा सेल्यूलर सिग्नल. जो परसीव करता है प्लांट वो कहाँ से करता है, एक्स्ट्रा सेल्यूलर सिग्नल्स है, एंड इट्स ट्रांसडक्शन बिटवीन एंड विद इन प्लांट सेल्स. और वो जो एक्स्ट्रा सेल्यूलर सिग्नल के थ्रू जो रिकॉग्नाइज किया वो कैसे बाहर से अंदर आया, प्लांट सेल्स के अंदर आया. और फिर इंटरेक्शन, वी हैव टू अंडरस्टैंड द इंटरेक्शन बिटवीन व्हाट, डिजीज रेजिस्टेंस जीन्स इन द प्लांट्स एंड उसके कॉरस्पॉन्डिंग एविरुलेंस जीन्स इन द पैथोजन, and which makes the plant susceptible or resistant to the pathogen attack. So इसके लिए हम एक और कर सकते हैं कि हम कुछ टर्म्स एंड डेफिनेशंस को समझने की ज़रूर है हम लोगों को यहाँ पर. जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम ये देखते हैं कि व्हाट इज़ हाइपर सेंसिटिव, ये सब टर्म्स एक्चुअली अभी हम जब आगे पढ़ेंगे ना तो ये सब टर्म्स आएंगे. व्हाट इज़ HR,
What is HR? Hypersensitive response. It is a rapid necrotic reaction which is often associated with plant resistance to incompatible. What is it? Hypersensitive response is a rapid necrotic reaction which is often associated with plant resistance. किससे resist होता है ये, मतलब किससे associate होता है, सॉरी, plant resistance. यानी कि plant resistance जब plant resist करता है तो एक rapid necrotic reaction होता है जिसको कि हम बोलते हैं hypersensitive response. So a rapid necrotic reaction which is often associated with plant resistance to incompatible avirulent heterologous pathogens. एक आप लोगों को बहुत इंपॉर्टेंट टर्म आएगा टाइप 3 सिक्रीशन सिस्टम. इसको हम हालांकि पढ़ चुके हैं लेकिन आई वांट टू रिपीट इट अगेन. प्रोटीन एक्सपोर्ट सिस्टम ऑफ ग्राम नेगेटिव mediating the transfer of what? It helps in mediating the transfer of bacterial proteins into eukaryotic cells. क्योंकि हमारे होस्ट तो यूकैरियोटिक है ना, तो हम उसको पढ़ रहे हैं. एविरुलेंस जीन, प्रोटीन AVR. पैथोजन जीन, व्हाट इज दिस? पैथोजन प्रोटीन. ये कौन सा AVR? ये क्या है? ये जीन है, प्रोटीन है. ये प्रोटीन क्या करता है? ये ट्रिगर करता है डिफेंस रिस्पॉन्स को इन प्लांट्स, एक्सप्रेसिंग अ कॉग्नेट फंक्शनली कॉरस्पॉन्डेंट रेजिस्टेंस जीन प्रोटीन. मतलब इसी का जो एक फंक्शनली जो वहाँ पर जीन रेजिस्टेंस जीन और प्रोटीन होगा उसको वो रिस्पॉन्ड करता है. सो दैट इज द एविरुलेंस जीन और AVR जीन. इट इज रिलेटेड टू द pathogen. So it is related to pathogen gene or that protein which triggers the defense response in the plants. What is PEP? It is a pathovar which is associated with this bacteria. HRC proteins ये क्या है? ये genes conserved in plant and animals. तो ये जो ये HRP है ये तो proteins होते हैं, ये C की ये they are in the plants and HRC in the animal cells. What is gene for gene? Model for plant defense in which plant resistance genes. Gene for gene model you all know. I know everybody knows, and it's always being asked, and nowadays it has become very important. And the gene for gene model ही है जो कि हमारा host plant defense system को हम आगे किसी न किसी तरीके से इस्तेमाल करेंगे और समझेंगे. It is a model for plant defense in which plant resistance genes, proteins recognize directly or indirectly specific pathogen avirulence genes, proteins, therefore activating the effector triggered plant immunity. What is injectisome? Bacterial multi-protein channel transporting proteins from the bacterial to other cells. किसमें होता है कि from the bacteria से to other cells में ये एक multi-protein channel है. Virulence factor क्या होता है? वो पैथोजन मेटाबोलाइट या प्रोटीन विच प्लेज अ रोल इन द डिजीज. ये क्या है? पैथोजन मेटाबोलाइट और प्रोटीन दैट प्लेज अ रोल इन द डिजीज. व्हाट इज पैम? पैथोजन एसोसिएटेड मॉलिक्यूलर पैटर्न. ये पैथोजन से रिलेटेड मॉलिक्यूलर पैटर्न्स है. ETI क्या है? इफेक्टेड ट्रिगर्ड इम्यूनिटी. टाइप 3 इफेक्टिव प्रोटीन्स कौन से होते हैं? वो प्रोटीन्स विच आर डिलीवर्ड बाय द बैक्टीरियल टाइप 3 सिक्रीशन सिस्टम to the plant cell interior and interact with the host components to promote disease or trigger defenses. Hope I know you all knowing this terminology, but still we are just trying to revise and understand again. What is a signal peptide? क्योंकि peptide के बारे में हम अक्सर बोलते रहते हैं. तो a signal peptide sometimes which is also referred as single sequence targeting signal, localization, then localization sequence, transit peptide, leader sequence or leader peptide. What is this? It is a short peptide which is usually 16 to 13 amino acids long. It is present at the end terminus of the majority of newly synthesized proteins that are destined towards the secretory pathway. Now these proteins include those that reside either inside certain organelles, that is the endoplasmic reticulum, Golgi or Golgi apparatus or endosome, which are secreted from the cell or inserted into most cellular membranes. Although most type 1 membrane bound proteins have signal peptides, the majority of type 2 and multi-spanning membrane bound proteins, they are targeted to the secretory pathway by the first transmembrane domain. ये हमने सब कुछ पढ़ा है when we were studying secretion system, and which biochemically resembles a signal sequence except that it is not cleaved. They are a kind of target peptides. So इसका हम फिगर आपको शो कर सकते हैं अगर आप लोग देखना चाहें तो. ये देखिए ये है सिग्नल पेप्टाइड. ये सिग्नल पेप्टाइड आप देख रहे हैं यहाँ पर.
ये एन टर्मिनल है, ये कंजर्व्ड मोटिव्स हैं, ये सी टर्मिनल है। तो इसका बीच में हम लोग जरूर जिक्र करेंगे स्कीमेटिक, दिस इज स्कीमेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ इफेक्टर प्रोटीन्स। एंड ये हम जानते हैं कि जब हम बीच में अभी आपके इस लेसन में बात करेंगे तो ये सिग्नल पेप्टाइड्स की बात होगी, तो हम बार बार में जरूर बोलेंगे ये एन टर्मिनल क्या है, सी टर्मिनल है, कंजर्व्ड मोटिव्स है, अमाइनो एसिड्स हैं, पेप्टाइड्स है, तो ये सब के बारे में जो जानकारी है तो इसको हम जरूर बोलेंगे, इसलिए हमने इसको बीच में terms and terminologies को लिया. Coming back to our original lecture which we were talking about what the gene for gene interaction and what happens exactly in the gene for gene interaction, the perception of pathogenic invasion and development of acquired resistance in plants. अब ऐसा होता है कि हमने इन कई acquired resistance पढ़ा है, systemic acquired resistance है, उसमें क्या होता है कि plants जो करते हैं different molecular and hormonal transduction pathways करते हैं, and therefore it becomes apparent that plants actively produce several phytohormones such as ethylene, jasmonate, salicylic acid and reactive oxygen intermediates prior to upregulation of our genes. So इससे पहले कि जब हमारे रेगुलेटरी जीन्स जो ये रेगुलेशन जो अरेस्टिन जीन जो रेगुलेट होते हैं उसको अप रेगुलेट करने के लिए पहले से ये सब चीज़ फाइटोहार्मोन्स सच एज इथाइलिन, जैस्मिनेट, सैलिसिलिक एसिड एंड रिएक्टिव ऑक्सीजन इंटरमीडिएट्स डेवलप होते हैं. So the physiological role of these molecules in plant resistance to pathogen is beginning to attract attention. I mean, it is already, we know how many times we have studied, and these studies have also helped in the use of transgenic plants, where we are trying to make the transgenic plants based on the genes, and therefore we need to understand the development of mutants with altered R genes, because if we mutate these genes then we can understand what is the role of the genes. When you mutate a gene and then you insert in a microorganism and then see the response, I think that helps, that the gene which you have mutated was a resistant gene or susceptible gene, was responsible for susceptibility of resistance. So this type of studies has provided us a very good insight into the mechanisms which is involved in pathogen perception, signal transduction and subsequent resistance to disease in plants. Now the specificity of the interaction between the plants and pathogen is still comprehensive. तो ये हम इसी phenomenon को understand करते हुए हम अब आगे बढ़ते हैं. So let us understand this host pathogen interact based on the effectors, how effectors are responsible for the disease development, they are responsible for resistance, and what is the mechanism. So let us understand first how bacteria transfers effectors to host. So अभी हमने effectors के बारे में तो जानकारी ले ली है कि effectors की definition तो हमने देख ली है. तो effectors का रोल क्या है host pathogen interaction में. host और pathogen जब interact करते हैं तो इनका रोल क्या होता है, तो ये हमें understand करना है. What are effectors? Effectors are the pathogen secreted molecules that manipulate host cell structure. Please try to remember these definitions because they are the part of your examination. So effectors are the pathogen secreted molecules. What are effectors? Again I repeat, effectors are pathogen secreted molecules that manipulate. Remember, each word has its meaning. So effectors are pathogen secreted molecules that manipulate host cell structure and function thereby facilitating infection or triggering defense responses. Okay, these can be toxins or elicitors. This dual activity of effectors has been broadly reported in many plant microbe pathosystems. So the effector has a double role. It can cause a disease or it can trigger the resistance mechanism. The term effector is neutral and does not imply a negative or positive impact on the outcome of the disease interaction. Effectors are secreted from pathogens secretion system. I think this whole, that's why I was telling again and again that you should read the secretory system. So far अभी जो plants से जो related हैं वो 4 types of secretion system हमने पढ़े हैं.
हमने देखे हैं एंड लास्ट लेक्चर में ये सब अच्छी तरह से एक्सप्लेन किए गए हैं. टाइप्स 1 to 4 दे हैव बीन आइडेंटिफाइड. सो अमंग देम जो टाइप 3 एसएस है, टाइप 3 सिक्रीशन सिस्टम है और टाइप 4 एसएस सिस्टम है, इनका क्या रोल है? दे कैन क्रॉस द बैक्टीरियल सेल वॉल्स एंड होस्ट यूकैरियोटिक सेल मेम्ब्रेन्स to deliver effectors into host cells directly without, kindly understand what I am saying, they deliver the effectors into the host cells directly without going through the extracellular matrix. Okay, those effectors can manipulate host cell functions once entering the host cells. तो ये बहुत ही मतलब ये रियली इसको समझना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जब हम ये सब पढ़ते हैं ना तब से हमें समझ में आता है कि कितना इंटरेस्टिंग है. इट इज़ रियली वेरी वेरी इंटरेस्टिंग. क्योंकि जब हम ये सिक्रीशन सिस्टम पढ़ रहे थे और हम बता रहे हैं कि आपको कि भाई ये क्यों इम्पॉर्टेंट है, क्या होता है कि जब ये लोग सिस्टम में अंदर जब जाते हैं सेल में तो एक्स्ट्रा सेल्यूलर मैट्रिक्स आप जानते हैं. व्हाट इज इट? द एक्स्ट्रा सेल्यूलर मैट्रिक्स जो कि बाहर की लेयर होती है सेल एनवेलप की, सेल वॉल्स की बाहर की लेयर. तो उसके चारों उसके अंदर ना जाके मतलब एक्स्ट्रा सेल्यूलर मैट्रिक्स नहीं, ये सीधे स्ट्रेट किस में चले जाते हैं? दे गो इनटू द होस्ट सेल. यानी कि ट्रिगर हो जाता है हमारा जो मॉलिक्यूल है, जो इफेक्टिव मॉलिक्यूल है, जो इफेक्टिव प्रोटीन है. तो टाइप 3 टाइप 4 में इतना अच्छा सिस्टम है कि वो सीधे ही उसको होस्ट सेल में ट्रांसफ़र कर देता है. तो ये आपको अच्छी तरह से ध्यान होंगे कि लास्ट टाइम हमने टाइप 1 सिस्टम पढ़ा था, देन टाइप 2 सिस्टम पढ़ा था, टाइप 3 टाइप 2 पढ़ा था, टाइप 5 पढ़ा था, टाइप 4 पढ़ा था, टाइप 6 पढ़ा था, टाइप 3 टाइप 1 और टैट एंड सिक्रीटरी पाथवेज पढ़े थे. हमने ग्राम नेगेटिव के बारे में पढ़ा था, हमने ग्राम पॉजिटिव के बारे में पढ़ा था और ये भी हमने अंडरस्टैंड करने की कोशिश की थी कि सिक्रीशन सिस्टम ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में क्या करते हैं. दे utilize a number of dedicated protein secretion systems to transport proteins across 1, 2 or 3 phospholipid membranes. So ये प्रोटीन सिक्रीट होते हैं. 2 स्टेप वो हमने डिफरेंट सिक्रीटरी और पाथवे पढ़े थे, टैट डिपेंडेंट मैकेनिज्म पढ़ा था. ये सब पढ़ के हमने इसको वी हैड ऑलरेडी स्टडीड, सो वी नीड नॉट रिपीट इट एंड सो वी कम बैक टू आवर लेसन दैट हाउ द इफेक्टर्स आर गोइंग इनटू द होस्ट सेल. सो फॉर अ पैथोजन टू सर्वाइव, अब जब हमारा ये सिस्टम जब उसको भेज देता है इफेक्टिव मॉलिक्यूल्स को, तो पैथोजन को कैसे सर्वाइव करना पड़ता है? इट प्रोड्यूसेस इफेक्टिव मॉलिक्यूल्स टू ऑब्टेन न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम इट्स होस्ट प्लांट्स. अब वो क्यों करते हैं? बैक्टीरिया को ये सब क्यों करना पड़ता है कि उसको होस्ट प्लांट में जाना क्यों जरूरी है? क्योंकि उसको अपने लिए इट हैज़ टू ऑब्टेन न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द होस्ट प्लांट एंड कल्टिवेट अ राइट एनवायरमेंट. Remember this, see, cultivate the right environment into establish the infection. ये एक और भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो वहाँ पर एक ऐसा इन्वायरमेंट डेवलप करता है जिसमें कि इन्फेक्शन डेवलप हो जाए. सो फाइटोपैथोजेनिक बैक्टीरिया यूज सेवरल सिक्रीशन पाथवेज टू डिलीवर द इफेक्टिव मॉलिक्यूल्स, हमने विच आई हैव ऑलरेडी स्पोकन, एंड दे गो इनटू द इंटरसेल्युलर स्पेसेस और इवन डायरेक्टली टू द होस्ट सेल्स. So what are these basically pathways? These pathways they vary in the complexity for delivery of the effectors. वो different methods हैं इनके, जो हमने बताया था ना 1, 2, 3, 4 इनके different methods है. The complexity of the pathways is based on the number of the proteins. क्यों होते हैं complex? It is based on the number of the proteins which are involved in the assembly of a channel or pore formed between the bacterial inner and outer membranes through which the effectors are transported from the cytosol to the outside of the bacteria. क्योंकि इसका एक बड़ा चैनल होता है, उसका एक पोर होता है, उसके अंदर में नंबर ऑफ प्रोटीन्स कितने जा रहे हैं. सो बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ द प्रोटीन्स का ये चैनलाइज होता है और प्रोटीन सिस्टम को कैसे ट्रांसफर होता है. जो ये जितने सिस्टम्स जो बने हैं वो किस पर डिपेंड किए हैं? ऑन द नंबर ऑफ द प्रोटीन्स. फर्स्ट नंबर ऑफ द प्रोटीन्स, क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटीन्स के बेसिस पे ही वो जो चैनल और जो पोर के थ्रू जो जाता है, इंजेक्ट होके बाहर जाता है, क्योंकि उसको इस प्रोटीन को कहाँ से निकलना पड़ता है? इसको इनर से एंड आउटर मेम्ब्रेन्स के थ्रू निकलना पड़ता है और फिर वो जाके कहाँ ट्रांसपोर्ट होना है? उसको अपने साइटोसोल, मतलब अपने ही इसको साइटोसोल से ट्रांसफ़र होना पड़ता है और इसको कहाँ जाना पड़ता है?
टू द आउटसाइड ऑफ द बैक्टीरियम, क्योंकि उसको बैक्टीरियम से बाहर ले जाना है, बैक्टीरिया को अपने सिस्टम को बाहर ले जाना है, क्योंकि बैक्टीरिया को अपने सिस्टम से बाहर ले जाना है तो उसको क्या करना होता है, इट हैज़ टू बी ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम द साइटोसोल टू द आउटसाइड ऑफ द बैक्टीरियम. सो देयरफॉर दिस कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द ट्रांसपोर्ट सिस्टम इज डिपेंडिंग ऑन द and the classes of the effectors is depending on the basis of the number of the proteins. So now we are trying to understand the classes of the effector, different types. What are the different classes of the effectors? So ये बहुत, मैं जो अभी बात कर रही थी आपसे कि एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स की बात कर रही थी, मैं ये बोल रही थी कि साइटोप्लाज्म में जाना है तो उसका कोई मीनिंग है कि एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स में कौन से इफेक्टर्स जाएंगे और साइटोप्लाज्म में कौन से इफेक्टर्स जाएंगे. आप समझने की कोशिश कीजिएगा कि व्हाट आई वांट टू से इज़ दैट जब हम ये बात करते हैं, इसकी बात करते हैं कि एक तो एपोप्लास्ट होता है, एपोप्लास्ट एरिया होता है जो कि एपोप्लास्ट इफेक्टर्स होते हैं, और एक होता है साइटोप्लाज्मिक इफेक्टर जो कि साइटोप्लाज्म में जाते हैं. सो ये एपोप्लास्ट एरिया आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं और साइटोप्लाज्म में अच्छी तरह से जानते हैं. तो होस्ट में उसको दो जगह जाना होता है, एक तो कहाँ पर जाना होता है, एक तो एपोप्लाज्म एरिया में. तो मतलब यानी कि बैक्टीरिया ने अपने सिस्टम्स में इस तरह से डेवलप कर रखे कि इफेक्टर्स अगर चाहें तो वो एपोप्लाज्म में जा सकते हैं, कुछ सिस्टम में, हर एक सिस्टम में नहीं, और किसी सिस्टम में साइटोप्लाज्म में डायरेक्ट चला जाता है. जो हमारे सेक्रेटरी सिस्टम है, दे कैन ट्रांसफर द प्रोटीन्स डायरेक्टली इनटू द साइटोप्लाज्म. So this is a very beautiful your understanding. So you can very well see these are the apoplastic effectors here. You can see the cytoplasmic effectors here. As I showed you, this is the N terminal, C terminal of the peptides, and ये एप्रिसोरियम है. ये एप्रिसोरियम तो आप समझ गए किसका है, फंजाई से रिलेटेड है. और ये इंटरसेल्युलर हेफे में, तो ये इंटरसेल्युलर हेफे में जब जाते हैं यहाँ पर एपोप्लास्टिक इफेक्टर्स जो जाते हैं, ये जो एरिया होता है तो यहाँ भी जाते हैं. ऐसे नहीं है कि केवल साइटोप्लाज्म में जाएंगे. तो हमें इन सब की पूरी जानकारी लेने के लिए अब हम आगे चलते हैं, जहाँ कि हम लोग ये पढ़ रहे हैं कि कितने टाइप ऑफ इफेक्टर्स होते हैं. ये जानकारी आप लोगों के लिए कितनी इम्पॉर्टेंट है. आई थिंक एज अ स्टूडेंट्स ऑफ PhD स्टूडेंट्स, आई थिंक दीज ऑल इंफॉर्मेशंस आर वेरी इम्पॉर्टेंट, बिकॉज अगर आप लोग इस जानकारी को इस तरह से समझने की कोशिश करेंगे तो ज़्यादा, हालांकि ये बहुत आप लोगों के लिए डिटेल्ड हो रहा होगा, बहुत इलाबरेट लग सकता है, बट I will really like that you people should understand all this. Now what are apoplastic effectors? They are secreted into the plant extracellular space, अभी जैसे मैंने दिखाया था डायग्राम में, whereby they target extracellular targets and surface receptor, whereas cytoplasmic effectors, they are translocated inside the plant cell, presumably through specialized structures like infection vesicles and haustoria that invaginate inside the living host cells. Plant pathogenic bacteria and fungi have evolved the capacity to deliver effector proteins inside the host cells through a diversity of mechanism. So again I want to show you that that particular diagram. You can see here, these are the apoplastic receptors. Okay, these are the apoplastic effectors. This is the cytoplasm, this is the apoplastic area. Okay, this is the aprisorium, this is the intercellular hyphae, this is a spore germinating, and here is the haustoreum. Now here is what, cytoplasmic effector, here is the haustoreum, these are the host receptors. So ये देखिए कैसे ये पर ज्वाइन कर रहे हैं. यहाँ पर ये क्या है इफेक्टर, ये क्या है एपोप्लास्टिक रिसेप्टर. तो ये आपस में कैसे ज्वाइन कर रहे हैं. तो इसी से वो कंपैटिबिलिटी और इनकम्पैटिबिलिटी जो बातें करेंगे हम आगे करेंगे. तो अब हम चलते हैं कि ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया क्या करते हैं. ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, दे विल यूज द स्पेशलाइज्ड सिक्रीशन सिस्टम सच एज T3SS टू डिलीवर प्रोटीन्स इनसाइड द होस्ट सेल्स. ग्राम नेगेटिव आर इम्पॉर्टेंट एज प्लांट पैथोजेनिक एज वेल एज बेनिफिशियल बैक्टीरिया. 14 का आपको ये अपन लोग क्लासिफिकेशन में, आई थिंक एवरीथिंग इज क्लियर दैट विच आर द ग्राम नेगेटिव. अब जो बायोट्रॉफिक फंजाई है जो कि होस्ट लिविंग होस्ट पे जाती है, वो क्या करती है, वो हॉस्टोरिया बनाती है.
तो हॉस्टरिया पहले तो दे वर थॉट टू प्राइमरीली फंक्शन इन न्यूट्रिएंट अपटेक, बट मोर रिसेंटली एविडेंस हैव इमर्ज्ड दैट हॉस्टरिया टेक पार्ट इन सिक्रीशन ऑफ क्लासेस ऑफ होस्ट ट्रांसलोकेटेड फंगल इफेक्टर्स। हम लोग इतने समय से ये जानकारी हमें थी ना कि हॉस्टरिया जो जाता है वो केवल न्यूट्रिशन लेने के लिए जाता है, लेकिन अब जैसे जैसे नॉलेज का एक्सपेंशन हो रहा है उसमें हमें ये समझ में आ रहा है कि ये जो हॉस्टरिया होता है, ये हॉस्टरिया क्या करता है, ये it takes what? The fungal effectors. What does it take? It absorbs the what? Evidence have emerged that hostelry take part in the secretion of classes of host translocated fungal effectors. They take part in the secretion of classes of the host translocated, जो host में जो translocated होता है उसको fungal effectors, जो fungal effectors जाते हैं into the host, तो इसके लिए भी अब ये काम में आने लगा है। ओमाइसीट्स में सच एज फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस दे आर ऑल्सो नोन टू सिक्रीट एपोप्लास्टिक इफेक्टर्स। देखो फाइटोप्थोरा में भी ये रिपोर्टेड है, विच हैव बीन रिपोर्टेड सिक्रीट एपोप्लास्टिक इफेक्टर्स इन एडिशन टू host translocated cytoplasmic effectors. A recent study have illustrated that the plant pathogenic fungi can evade host immunity by way of effectors that suppress R gene mediated resistance. For example, the effector AVR1 of Fusarium oxysporum forma specialis lycopersicki suppresses the resistance response which is conferred by the genes I-2 and I-3. ये सब genes के नाम हैं एक्चुअली में, है ना। However, there are many queries which are still unanswered कि भाई इफेक्टर सिक्रीट होते हैं किस साइट पे जाके सिक्रीट होते हैं, क्या ये माइक्रोब और उसके इंटरफेस पे होते हैं कि पहले सिक्रीट होके वहाँ जाते हैं कि पहले वहाँ जाके सिक्रीट हैं, आर देयर वेव्स, मतलब डिफरेंट वेव्स होती हैं इसकी, क्या ये वेव इफेक्टर्स डिस्टिंक्ट फंक्शन परफॉर्म करते हैं, इस तरह के कई क्वेश्चंस हैं। So complex, and this is a very complex and interesting relationship between the organisms in ecology and evolution. Host pathogen interaction is the basis of the infectious diseases. Please read very carefully. Host pathogen interaction is what? It is a basis of infectious diseases. Pathogens span a broad spectrum of biological species including viruses, bacteria, fungi, protozoa and multicellular parasites. In all these cases, a pathogen which is causing an infection usually exhibits an extensive what does it exhibit? An extensive interaction with the host during pathogenesis. जब ये पैथोजेनेसिस हो रहा होता है तो उसका बहुत एक्सटेंसिव इंटरेक्शन है। सो द क्रॉस टॉक्स, अब हम लोगों ने कई बार इस वर्ड को सुना होगा, बड़े सेमिनार्स हुए, स्टूडेंट्स ने बहुत इसके बारे में बातचीत की है विभिन्न यूनिवर्सिटीज़ में, विभिन्न प्लेसेस में, कि देयर इज़ अ क्रॉस टॉक बिटवीन अ होस्ट एंड अ पैथोजन विच अलाउज द पैथोजन टू सक्सेसफुली इन्वेड द होस्ट ऑर्गेनिज्म टू ब्रीच द इम्यून डिफेंस, यानी कि होस्ट पे पहले तो कैसे जाना है। ब्रीच मीन्स जो उसने इम्यून डिफेंस सिस्टम कर रखा होता है ना, उसने कोई ना कोई लेयर बना रखी होती है, तो उस लेयर को कैसे ब्रीच में यानी कि कैसे तोड़ना है, एज वेल एज टू रेप्लिकेट एंड परसिस्ट विद इन द, फिर उसको ऑर्गेनिज्म में उस होस्ट में जाके रेप्लिकेट करना है और वहाँ पर जाके परसिस्ट करना है यानी कि सर्वाइव करना है। These are the most important, therefore widely studied groups of the host pathogen interaction is the interaction between pathogen protein effectors and the host cell. So effectors can be defined as parasitic genes having phenotypic expression in host bodies and behavior. Very good. I think this definition can make you understand so many things. What is it? Effectors can be defined as parasite genes having phenotypic expression in host bodies. देखो ये effectors का जो phenotypic expression होता है किस में जाके होगा? host में. And behavior. So its behavior and expression we can understand only in the host bodies. Effectors are the pathogen secreted molecules. Effectors are the pathogen secreted molecules that manipulate host cell structure, and function, thereby facilitating infection or triggering defense responses. Facilitating infection or triggering the defense responses. These
these can be toxins or elicitors. This dual activity of systems. Now अब इस काम को करने के लिए हमारे पास 4 तरीके के सिक्रेशन सिस्टम हम ऑलरेडी आपको बता चुके हैं, और जिसमें कि टाइप 3 एंड टाइप 4 तो डायरेक्ट चले जाते हैं, और अब हमें देखना है कि ये जो एपोप्लास्टिक इफेक्टर्स और साइटोप्लाज्मिक इफेक्टर्स होते हैं ये कितनी प्रकार के होते हैं. तो एपोप्लास्टिक इफेक्टर्स कहाँ सिक्रीट होते हैं? इन द प्लांट सेल्युलर एक्स्ट्रा सेल्युलर स्पेस वेयर बाय दे टारगेट एक्स्ट्रा सेल्युलर टारगेट्स एंड सरफेस रिसेप्टर्स, वेयर साइटोप्लाज्मिक इफेक्टर्स आर ट्रांसलोकेटेड इनसाइड द प्लांट सेल्स. नाउ व्हिच आर दिस एपोप्लास्टिक इफेक्टर्स? नंबर टाइप्स ऑफ एपोप्लास्टिक इफेक्टर्स. काइंडली अंडरस्टैंड ये एपोप्लास्टिक इफेक्टर्स क्या हैं. ये वो हैं जो कि एक्स्ट्रा सेल्युलर मैट्रिक्स में जाने वाले हैं. तो नंबर 1 क्या है? दे आर नोन एज एंजाइम इनहिबिटर्स. सेवरल प्लांट पैथोजेनेसिस रेटिन यानी सेवरल पीआर प्रोटीन्स सच एज ग्लूकानेसेस, काइटिनेसेस एंड प्रोटीएसेस आर हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स. They are the hydrolytic enzymes. So fungal and bacterial plant pathogens have evolved. They have developed a very good mechanism for protection against the activities of these PR proteins. So like these pathogens, plant pathogenic oomycetes such as evolved device for protection against the activities of these PR protein. Like this pathogens, like similarly to these plant pathogenic oomites जैसे Phytophthora है, they have also developed the mechanism. They have also developed the mechanism to escape the enzymatic activity of the PR proteins. So oomycetes contain little chitin in their cell wall and are therefore resistant to plant chitinaceae. They are resistant to plant chitinaceae. So Phytophthora also evolved active counter defense. तो इसलिए उसने क्या करा कि उसने active counter defense mechanism develop किया by secreting inhibitory proteins that target host glucanaceae and proteases. तो उसने क्या किया कि दूसरी तरह के प्रोटीन्स डेवलप किए जो कि ग्लूकानेसेस एंड प्रोटीसेस में होते हैं. सेकंड है स्मॉल सिस्टीन रिच प्रोटीन्स. तो कुछ ऐसे वाले प्रोटीन्स बने लाइक मैनी AVR जीन्स सच एज क्लाडोस्पोरियम फल्वम, AVR2, AVR4, AVR9 एंड फाइटोप्थोरा एलिसिटिन्स ने इन्होंने लेस देन 150 अमाइनो एसिड जो कि दे हैव डेवलप्ड द सिक्रेटेड प्रोटीन्स विद एन इवन नंबर ऑफ सिस्टीन रेसिड्यूज. जानते हैं ना सिस्टीन क्या होता है? अमाइनो एसिड्स. इट इज़ अ अमाइनो एसिड विच कैन इंड्यूस डिफेंस रिस्पॉन्सेज when infiltrated into plant tissues. Now such type of some of these are common structural features, most notably secretion and the disulfide bridges formed by the pairs of cysteines are essential for defense induction and avirillus function. The disulfide bridges could enhance the stability in the plant epoplast. ये जो bridges हैं, ये जो इनका structure है वो उसको allow करता है plant के epoplast में survive करने के लिए, and it is rich in the proteases. Now third is NEP-like proteins. NEP-like proteins. What are these proteins? These are widely distributed in bacteria and fungi, particularly in plant associated species. This necrosis and ethylene inducing protein, that is NEP1, was originally purified from culture filtrates of the fungus. इसको NEP1 को किस में से किया था? Fusarium oxysporum forma specialis, erythroxyli. So NLPs they have subsequently been described in species किस में? Bacillus में, Erwinia में, Verticillium में, Phytophthora में and Pythium में. तो कृपया करके आप याद रखिएगा ये वाले जो प्रोटीन्स हैं इनका नाम क्या है? एंजाइम इनहिबिटर्स. पहले तो हमने पढ़ा एंजाइम इनहिबिटर्स. सेकंड कौन से पढ़े? ये हम एपोप्लास्टिक इफेक्टर्स के बारे में बात कर रहे हैं ना. सेकंड इज स्मॉल सिस्टीन रिच प्रोटीन्स. ओके. उसके बाद में थर्ड हम क्या देख रहे हैं? NEP1 लाइक प्रोटीन्स, जो कि क्या है? ये प्रोटीन्स क्या है जो कि एक इनको क्या बोला जाता है बेसिकली? NEP1 क्या इसका फुल फॉर्म क्या है? नेक्रोसिस एंड इथाइलिन इंड्यूसिंग प्रोटीन. ठीक है. और ये कौन कौन से फंगस से रिपोर्टेड भी हैं? बैक्टीरिया से भी रिपोर्टेड हैं, बैसिलस, एर्विनिया, वर्टिसिलिया, फाइटोप्थोरा एंड पीथियम से. और इसका डाइवर्स फाइलोजेनेटिक देखा जाए तो डिस्ट्रीब्यूशन है इन प्रोटीन्स का, मीन्स इंडिफरेंट, एंड इट इज़ ऑल्सो फाउंड टू have the remarkable ability to induce cell death in as many as 20 dicotyledonous plant. So the wide phylogenetic conservation and broad spectrum activity of NLPs distinguish them from most cell death elicitors. ये अलग हैं cell death elicitors and suggest that the necrosis inducing activity is functionally important.
अब चौथा जो एलिस्टर हिपोप्लास्ट है उसका नाम है GP42 PEP13, जिसको कि बोलते हैं ट्रांसग्लूटामिनेस मतलब GP40। ये क्या है, ये भी दिस इज ऑल्सो अबंडेंट सेल वॉल ग्लाइकोप्रोटीन ऑफ फाइटोप्थेरा, इट हैज़ बीन रिपोर्टेड इन फाइटोप्थेरा। दीज आर सम एग्जाम्पल्स एक्चुअली जहाँ पर कि ये डिफरेंट रिपोर्ट हुए हैं। And saying that it also triggered the defense gene expression and synthesis of antimicrobial phytoalexins in parsley. पार्सले क्रॉप है, आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं, थ्रू बाइंडिंग टू अ प्लाज्मा मेम्ब्रेन रिसेप्टर। ये किसको जाके ज्वाइन करता है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन रिसेप्टर को ज्वाइन करता है। Then there is another fifth one, a 13 amino acid peptide fragment which is known as PEP13. This is necessary for activation of defenses in parsley and triggers cell death in potato. PEP1 is a 13 amino acid fragment which is necessary and enough for activation of defenses in parsley and triggers the a defense mechanism किसमें कर रहा है, parsley में, but ये cell death cause कर रहा है potato में. So biochemical analysis indicated that GP42 is a calcium plus dependent transglutaminase that is highly conserved in Phytophthora. So it is a calcium dependent transglutaminase that is highly conserved in Phytophthora. The PEP13 motif is important for activation of plant defenses and TGS transglutaminase activity. This suggests, इसका अर्थ ये है कि इसके बारे में हम ये समझ में आया कि जो ये प्लांट्स जो इवॉल्व होते रिसेप्टर्स को रिकॉग्नाइज एंड एसेंशियल एपिटोप विद इन द transglutaminase proteins and that GP42 functions as a pathogen associated molecular pattern. So GP42 functions as a pathogen associated molecular pattern PAM. It is not known whether Phytophthora GP42 TGSs play an essential role in avirulence or fitness of the pathogen, but इसका ये हो चुका है, मतलब इसकी पहचान हो चुकी है। एक ये क्या है, PEP13, ये इनफ है एक्टिवेशन ऑफ डिफेंस। इस देखिए ये पार्सले में डिफेंस सिस्टम कर रहा है, लेकिन ये ट्रिगर कर रहा है सेल डेथ इन पोटैटो, ठीक है। एंड इसको सिंस ग्लूटामिनेज एक्टिविटी इट इज डिपेंडेंट ऑन व्हाट, कैल्शियम, एंड इट इज हाईली कंजर्व्ड इन फाइटोप्थेरा। सो ये जो PEP13 मोटिफ है इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द प्लांट डिफेंसेस एंड TGS एक्टिविटी। तो जो प्लांट्स जब इवॉल्व होते हैं इनको रिसेप्टर इवॉल्व करने टू रिकॉग्नाइज TGS प्रोटीन्स एंड GP42 फंक्शंस। तो प्लांट में ये सब रिकॉग्नाइज करने के लिए होते हैं। सो दिस इज नोन एज अ पैथोजन एसोसिएटेड मॉलिक्यूलर पैटर्न। अब हम दूसरी कैटेगरी ऑफ इफेक्टर्स बात है जिनको क्या बोलते हैं हम, साइटोप्लाज्मिक इफेक्टर्स। Now this is RXLR protein family. This is actually what? Race specific resistance to Phytophthora species follows the gene for gene model, which implies that AVR genes from the pathogen are perceived directly or indirectly by matching resistance genes from the plant. ये by matching the resistance genes from the plant. सो जब रेस, इसके लिए क्या होता है कि रेस स्पेसिफिक AVR जीन्स होने चाहिए जो कि रिकॉग्नाइज कर लेते हैं आर जीन्स इन द प्लांट सिस्टम। सो ये सब ये वाले जो जीन्स हैं दे हैव बीन क्लोन्ड ओनली रिसेंटली एंड all 4 oomacetes AVR proteins ATR1, ATR13, AVR3A and AVR1B, they carry a signal peptide followed by a conserved motif. That वो conserved motif क्या है, RXLR, that occurs in many secreted oomycete proteins. ये किसमें मिलते हैं, ये many oomycete proteins. So RXLR motif is similar to a host. It is similar to a host which is targeting signal that is required for translocation of proteins from malaria parasites into the cytoplasm of host. Okay, from the malaria into the cytoplasm of host cells, leading to the hypothesis that RXLR functions as a signal. ये RXLR जो है, ये motif जो है, ये function कैसे करता है? It mediates trafficking into the host cells and पहले तो host पे चला जाता है and then it triggers the immunity. So this finding has actually
helped in understanding the animal eukaryotic pathogens, as well as it has also helped in understanding the mechanism for effective delivery into the host cells. Now there is another effector. ये हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? हम साइटोप्लाज्मिक इफेक्टर्स के बारे में बात कर रहे हैं. तो एक तो हमारा RXLR मोटिव जो होता है वो वाला फैमिली का वो हो गया. अब हमारा ये है CRN प्रोटीन फैमिली. It is associated, the plant associated microbes, they rely on secreted virulence factors, effectors to modulate host immunity. and आप लोगों को ये तो बार बार में हम समझा चुके हैं कि ये जो प्लांट एसोसिएटेड माइक्रोब्स की जो विरुलेंस फैक्टर्स हैं या जो इफेक्टर्स हैं ये किसके लिए होते हैं? टू मॉड्यूलेट द होस्ट इम्यूनिटी, यानी कि जो वो अंदर जाएंगे तो मॉड्यूलेट करते होस्ट इम्यूनिटी को एंड इंश्योर प्रोग्रेसिव इन्फेक्शन, कि कहीं से इन्फेक्शन हो जाए, यानी कि वो अंदर जाके उसको मॉड्यूलेट करेंगे. वो पूरी कोशिश करेंगे कि डिफेंस सिस्टम को ब्रेक करें. अगर कंपैटिबल हो जाते हैं तो डिफेंस सिस्टम आ जाता है. अगर वहाँ पर आर सिस्टम नहीं है तो क्या होगा? वो उस एनवायरनमेंट को मॉड्यूलेट करेंगे और डिजीज डेवलप करेंगे. सो अमंग्स द सीक्रेटेड प्रोटीन रिसेप्टरीज, amongst the secreted protein, different reports defined and studied in pathogens till date. CRN का full form क्या है? Crinkling and necrosis. Okay, crinkling and necrosis, they have emerged as one of the few highly conserved protein families which spread across the several kingdoms. मतलब कई जगह reported है. This CRN proteins were first identified in plant pathogenic oomycetes. ये oomycetes में discover हुए थे. फिर then they were found to be modular factors that are secreted and translocated inside the host cells by means of the conserved N-terminal domain. I think I've already explained you what is the N-terminal domain. Okay, so they were found to be the modular factors that are secreted and translocated inside the host cells by a mean of conserved N-terminal domain. Now subsequent localization and functional studies have led to the view that this CRN terminal execute their presumed effector function in the host nucleus. अब इसके बारे में जानकारी ये हम अभी वापस रिपीट करते हैं कि मैं अभी जो बात कर रही हूँ मैं उन इफेक्टर्स की बात कर रही हूँ जो कि साइटोप्लाज्म में जाते हैं. इफेक्टर आप लोग खूब अच्छी तरह से जानते हैं क्या है. ये प्रोटीन्स हैं जो कि बैक्टीरिया या फंगस और ये जो हमारे पैथोजन है ये सीक्रेट करते हैं. ये इनको जाना होता है होस्ट सेल्स में. होस्ट सेल्स में ये क्यों जाते हैं? दो के लिए, या तो डिजीज कॉज करते हैं या फिर रेजिस्टेंस. तो दे हैव प्रिज्यूम द इफेक्टिव फंक्शन इन द होस्ट न्यूक्लियस. तो ये कहाँ गए? ये होस्ट न्यूक्लियस में गए. टारगेटिंग द प्रोसेसेस विच इज़ रिक्वायर्ड फॉर इम्यूनिटी. ये टारगेट भी करते हैं, ये मतलब डिफेंस को ब्रीच भी करते हैं. डिफेंस को ब्रीच करना मतलब डिफेंस सिस्टम प्लांट के को ख़त्म करना. These findings have led to a great interest in this large protein family and driven the identification of additional CRN-like proteins in other organs. इस CRN लाइक प्रोटीन्स को जो लोगों ने पढ़ा, जब इसको समझा, तो इसने हमें बहुत ही नॉलेज दी है प्रोटीन्स के बारे में जानकारी की, और ये समझने के लिए कि कैसे पैथोजेनेसिस होता है. एंड क्योंकि और इस तरह से कई इसमें डिस्कवरीज हुई हैं एंड दे हैव फाइंड आउट लार्ज नंबर ऑफ CRN प्रोटीन सीक्वेंसेज जो कि विच हैज़ एक्सपैंडेड द रेंज ऑफ फिनोटाइप्स टेंटेटिवली एसोसिएटेड विद फंक्शन एंड रिवील्ड सम ऑफ द मॉलिक्यूलर फंक्शंस टुवर्ड्स विरुलेंस. तो दो तरह से इन लोगों के फंक्शन इन्होंने देखे हैं. एक तो देखे हैं expanded the range of phenotypes tentatively associated with the function and revealed some of the molecular function, इनके molecular function for the कि कैसे ये virulence cause करते हैं. So the increased number of characterized CRNs have also presented set of challenges that may impede significant procedure. अब ये challenges की बात है, research की बात है. CRN1 and CRN2 were identified following in plant functional expression. It was discovered in the screening proteins of Phytophthora infestan based on a vector which was derived from potato virus X. So expression of both the genes in Nicotiana species and in the host plant tomato resulted in a leaf crinkling and cell death phenotype accompanied by an induction of a defense related genes. So इसमें दो चीज़ें इन लोगों ने पता चली कि एक तो ये सिस्टम्स भी करता है, और दूसरे सिस्टम में इन लोगों ने ये भी देखने की कोशिश की कि ये इट इज़ ऑल्सो द CRN1 and CRN2 they may function as effectors that perturb the host cellular processes based on analogy to bacterial effector, which typically cause macroscopic phenotypes such as cell death,
chlorosis and tissue browning when expressed in host cells. Now these two CRN genes, they are expressed in Phytophthora infestan during colonization of host plant tomato. Okay, अब हम दो तरह के इफेक्टर्स समझ चुके हैं. अब हम लोगों ने क्या क्या समझा? एक तो वो इफेक्टर्स जो कि एपोप्लास्ट में जाते हैं, एक वो इफेक्टर्स जो कि साइटोप्लाज्म में जाते हैं. तो ये दोनों तरह के हमने इफेक्टर्स पढ़ लिए हैं और समझ लिए हैं, और हमने बैक्टीरिया में भी देखे हैं और किस में भी देखे हैं, जो कि फंगस में भी जाते हैं. ठीक है, अब हम देखना चाहेंगे कि कौन सा सो नाउ अब हम ये कुछ जीन्स वो देखना अभी तक हमने जो जीन्स बात करी एपोप्लास्ट और उस इफेक्टिव जीन्स की, कुछ कॉमन का बात करी, कुछ करी. सम इम्पॉर्टेंट जीन्स, जिन इफेक्टिव जीन जिनका की पैथोजेनिसिटी का फंक्शन है, लेट अस अंडरस्टैंड दोज ऑल्सो. नाउ दिस इज एर्विनिया अमाइलोवेरा. द नेम ऑफ द जीन इज DSPEF एंड पैथोजेनिसिटी फंक्शन क्या है उसका? फायर ब्लाइट सिम्टम एक्सप्रेशन इन पेयर एंड एप्पल. Pseudomonas syringae pathover mochilocola, AVR RMP1. What does it do? Water soaked symptom expression and bacterial multiplication. Pseudomonas syringae pathover fasciolicola, AVR PPHF, water soaked symptom expression and bacterial multiplication in bean and soyabean. तो ये डिफरेंट बहुत इम्पॉर्टेंट क्या नाम है, जीन्स के नेम है जो कि इफेक्टर है, इफेक्टर प्रोटीन्स, इफेक्टर जीन्स, इफेक्टर प्रोटीन्स. प्लीज़ मैं बार बार इसको रिपीट कर रही हूँ. देन Pseudomonas syringae pathover fasciolicola, AVR PPHF, water soaked symptom expression and bacterial multiplication in bean and soyabean. Pseudomonas syringae pathover tomato, AVR A, AVR E, AVR PTO, AVR RPT2, symptom expression and bacterial multiplication, aggressiveness and bacterial multiplication in tomato. Then Xanthomonas axonopodis pathover citri, PTHA. So what is it doing? Intercellular growth and induction of cankers in citrus. Then Xanthomonas axonopodis, Xanthomonas axonopodis pathover citri. It is PTHA, intercellular growth and induction of cankers in citrus. Xanthomonas campestris pathover malvacearum, AVR B6, PTHN, water soaked symptom expression in cotton. Xanthomonas oryzae pathover oryzae, AVR A X5, AVR A X7, lesion length and bacterial multiplication in rice, aggressiveness, lesion length and bacterial multiplication in rice. So these are the different pathogenicity functions of the effector genes. तो ये सब जीन्स हुए हैं, इन पे काम हुआ है और उनका रोल देखा गया है कि कैसे ये डिजीज कॉज करते हैं जब वो प्लांट्स में सिस्टम में जाते हैं. तो ये हमने पढ़ लिया इसका पैथोजेनिसिटी फंक्शंस ऑफ द डिफरेंट. तो अभी बैक्टीरिया के, जैसे मैं कह रही थी कि स्पेसिफिकली हम कुछ बैक्टीरिया के भी बारे में बात करेंगे, कुछ फंगस के बारे में बात करेंगे, तो हमने इसके बारे में जानकारी दी. अब क्या होते हैं पैथोजन एसोसिएटेड मॉलिक्यूलर पैटर्न, मतलब पैम्प्स क्या होता है एक्चुअली में. हमें ये समझना है कि पैम्प्स होता क्या है. द की कंसेप्ट विच इज सराउंडिंग बेसल इम्यून सिस्टम is that they recognize certain broadly conserved molecules which are associated with a wide range of pathogens. अब जो इम्यून सिस्टम के बारे में, हम प्लांट के इम्यून सिस्टम के बारे में जब कब से बात कर रहे हैं, आई थिंक नॉन स्टॉप वी आर डिस्कसिंग अबाउट इट. तो वो क्या है बेसिकली, वो है क्या? इट कैन recognize certain broadly conserved molecules which are associated with a wide range of pathogens. देखिए, इम्यून सिस्टम प्लांट सिस्टम में इस तरह से डेवलप किया हुआ है कि ये जो मॉलिक्यूल्स जो होते हैं, जो कि हम जीन्स के बारे में बात कर रहे हैं, जो कि पैथोजेनिसिटी से रिलेटेड है, उनको रिकॉग्नाइज कर लेता है. सो द टर्म पैम्प वॉज डेवलप्ड बाय रिसर्चर्स ऑफ द मैमेलियन इनेट इम्यून सिस्टम. मतलब पहले तो ये मैमेलियंस में काम किया गया था टू डिस्क्राइब दिस टाइप ऑफ डिफेंस एक्टिवेटिंग कंपाउंड. The term MAMP, microbe associated molecular pattern, is gaining favor because non-pathogenic microorganisms also possess PAMPs. ओके, जो नॉन पैथोजन है उसमें भी पैम्स होते हैं, मतलब पैथोजन एसोसिएटेड मॉलिक्यूलर पैटर्न होता है, इसलिए उसको मैम्प भी बोलते हैं, माइक्रोब एसोसिएटेड मॉलिक्यूलर पैटर्न भी बोलते हैं.
Well developed examples of MAMs that are detected by plants include bacterial flagellants. कौन कौन से हैं वो जो कि ये पैथोजेनिसिटी से रिलेटेड है? बैक्टीरियल फ्लैजिलेंस हैं, लाइपोपॉलीसेकेराइड्स है, इलोंगेशन फैक्टर 2 है. आई थिंक एवरी टू आई TU मीन्स इलोंगेशन फैक्टर TU2. एंड फंगल काइटिन है. ये फंगल काइटिन हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? फंजाई के लिए. और रूमाइसिट में पेप13 है और हेप्टाग्लूकोसाइड्स है. तो इन सबको रिकॉग्नाइज करने के लिए उसके अंदर पैटर्न्स होते हैं. सो इट इज़ नाउ एक्सेप्टेड दैट प्लांट्स कंटेन 2 लाइन्स ऑफ डिफेंस. अब ये बात भी हमें समझ में आ गई कि हमारे प्लांट्स के पास 2 लाइन ऑफ डिफेंस है, और 2 लाइन ऑफ डिफेंस होनी बहुत जरूरी है. क्यों होनी जरूरी है? द फर्स्ट लाइन जो होती है वो प्रोवाइड करती है बेसल डिफेंस. वो क्या प्रोवाइड करती है? पोटेंशियल पैथोजेंस के अगेंस्ट, एंड इट इज़ बेस्ड ऑन रिकॉग्निशन ऑफ पैम्प्स बाय द सो कॉल्ड PAMP recognition receptors PRRs that activate PAMP triggered immunity. These PRRs that activate the PAMP triggered immunity PTI and prevent the further colonization of the host Okay. ये डिफेंस अगेंस्ट ऑल पोटेंशियल पैथ बेस्ड ऑन द रिकॉग्निशन ऑफ पैम्प्स बाय द सो कॉल्ड पैम्प रिकॉग्निशन रिसेप्टर्स दैट एक्टिवेट पैम्प ट्रिगर्ड इम्यूनिटी एंड प्रिवर्ट फर्दर colonization of the host. One of the best known PAMPs is chitin. One of the best known PAMPs is chitin, a major structural component of fungal cell wall, for which 2 LYSM type of receptor like kinases involved in its perception have been characterized in rice and Arabidopsis. Evidence is now accumulating that AVR genes encode effectors that suppress PTI. Evidence is now accumulating that AVR genes encode effectors that suppress the PTI. मतलब जो पैथोजन ट्रिगर्ड इम्यूनिटी है, अभी आप लोग को ये पता होना चाहिए कि AVR जीन्स को अभी तक हम क्या रोल समझ रहे थे कि वो अगर रेजिस्टेंस मिल जाता है तो उसको रेजिस्टेंट कर देगा, अगर नहीं होता है तो डिजीज कर देगा. लेकिन उसमें एक और काबिलियत होती है कि वो सप्रेस भी कर देता है पीटीआई को. सो अनेबलिंग अ पैथोजन टू इन्फेक्ट इट्स होस्ट प्लांट एंड कॉज डिजीज. सो जिससे कि वो होस्ट प्लांट को मतलब वो पैथोजन ट्रिगर्ड इम्यूनिटी को भी स्टॉप कर देता है. आप समझ रहे हैं ना कि इफेक्टर्स जो कि जब एंटर करते हैं, तो हम अभी तक सोच रहे थे कि AVR जीन का, और उसके बारे में अभी हम पढ़ रहे थे ना कि AVR जीन जब होता है उसको कंपैटिबल R जीन मिल जाएगा तो वो रेजिस्टेंस हो जाएगा, अगर नहीं होगा तो ससेप्टेबल हो जाता है. लेकिन उसके पास ऐसा सिस्टम भी होता है कि वो R सिस्टम को सप्रेस भी करते हैं. सो वंस द बेसल डिफेंस सिस्टम ऑफ प्लांट्स इज ओवरकम बाय द पैथोजेंस, प्लांट्स रिस्पॉन्ड विद द डेवलपमेंट ऑफ अ मोर स्पेशलाइज्ड रिकॉग्निशन सिस्टम. अगर सपोज कर वो ओवरकम होता है तो फिर प्लांट्स एक और रिकॉग्नाइज सिस्टम को लेते हैं, वो स्पेशलाइज्ड रिकॉग्निशन होता है, विच इज़ बेस्ड ऑन द इफेक्टिव परसेप्शन बाय आर प्रोटीन्स. मतलब आर प्रोटीन्स उसको परसीव कर लेते हैं, एंड सब्सिक्वेंट एक्टिवेशन ऑफ इफेक्टेड ट्रिगर्ड इम्यूनिटी. क्या होता है? वो जो इफेक्टर जो कि ये रिकॉग्नाइज कर लेते हैं कि ये पैथोजन मेरे इम्यूनिटी को ख़त्म कर रहा है, तो फिर एक और इफेक्टर ट्रिगर्ड इम्यूनिटी का इफेक्टर प्रोटीन्स डेवलप होते हैं, विच लीड्स टू रैपिड एंड एक्यूट डिफेंस रिस्पॉन्सेज इन प्लांट. The hallmark of which is the hypersensitive response. Actually में ये क्या response आता है? Hypersensitive. This triggers a second wave of co-evolutionary arms race between pathogens and plants. ये क्या trigger करता है? Second wave of co-evolutionary arms race between the pathogen as well as the plants, during which pathogens respond by mutating or losing effectors or by developing novel effectors. अब इसके क्या होता है कि जब प्लांट्स क्या कर देता है, एज अ रिजल्ट जब उसको ये पता चल जाता है कि हमारा इम्यूनिटी सिस्टम को पैथोजन ब्रेक करने वाला है, तो वो एक दूसरा सिस्टम और डेवलप करता है, एंड दैट इज़ कॉल्ड द हाइपर सेंसिटिव रिस्पॉन्स. नो इससे क्या होता है, एक अनदर सेट ऑफ ट्रिगर या इफेक्टर्स डेवलप होते हैं, जो कि ड्यूरिंग विच पैथोजेंस रिस्पॉन्ड बाय म्यूटेटिंग और लूजिंग इफेक्टर्स
उस समय क्या होता है, पैथोजन रिस्पॉन्ड करता है, वो अपने इफेक्टर्स को लूज़ करता है, वो उसको मॉड्यूलेट करता है एंड कुछ इफेक्टर्स को वो डेवलप करके अपना चेंज करके वो इस तरह से डेवलप करता है कि वो अवॉइड कर जाता है या ईटीआई को सप्रेस कर देता है, यानी कि वो कोई अपना नया मॉलिक्यूल उसी को मॉडिफाई कर देता है और मॉडिफाई करके क्या करता है, ईटीआई को ब्रेक करता है। जो इफेक्टिव ट्रिगर्ड इम्यूनिटी जो हमारे डेवलप हुई थी प्लांट सिस्टम में, उसकी सिस्टम को ब्रेक कर देता है। जो कौन सा सिस्टम ब्रेक करता है, कौन सिस्टम ब्रेक करता है, पैथोजन। जब पैथोजन एंटर करता है तो प्लांट्स परसीव कर लेते हैं। जो परसीव कर लेते हैं, पहले तो ये था कि जब ये रिस्पॉन्ड आपस में कंपैटिबल होते हैं तो रेजिस्टेंस सिस्टम डेवलप होता है, लेकिन धीरे धीरे प्लांट्स बैक्टीरिया ने एक और सिस्टम डेवलप कर लिया कि वो जो इम्यूनिटी, जो इफेक्टिव ट्रिगर्ड इम्यूनिटी को कैसे सप्रेस करे। तो उसके लिए क्या करता है, वो कई बार अपने मॉलिक्यूल्स को ब्रेक कर देता है। जब वो मॉलिक्यूल्स ब्रेक करता है तो वो मैच नहीं कर पाते, जब वो मैच नहीं कर पाते हैं तो ऑटोमेटिकली immune response break हो जाता है। A related concept from both plant and animal research is that the genes for host map, microbiotic molecular pattern receptors, are relatively stable and heritable, allowing the capacity for early detection of microbial infections to the generation to generation. A third एक concept और है कि a third concept is the perception that basal immunity has a relatively primitive and inferior immune capacity relative to adaptive capacity, कि थोड़ा सा वीकली डेवलप्ड है, यानी कि जो इम्यूनिटी सिस्टम है वीकली डेवलप्ड है। दिस आइडिया डिराइव्स इन पार्ट फ्रॉम द ऑब्जर्वेशन कि जो बेसल डिफेंसेस हैं दे आर नॉट ओनली पार्शियली इफेक्टिव एट रिस्ट्रिक्टिंग पैथोजन, इट ऑल्सो कि एक तो ये पार्शियली इफेक्टिव होते हैं, मतलब पैथोजन को रेस्ट्रिक्ट नहीं कर पा रहा है, ब्रेक हो रहा है। दूसरा, इट ऑल्सो डिराइव्स फ्रॉम द कंसेप्ट दैट द बेसल डिफेंस आर रिलेटिवली स्टैटिक, मतलब वो एक ही जगह, एक्चुअली में ये स्टैटिक है, मूव नहीं कर सकता। प्लांट का जो ये इम्यूनिटी सिस्टम वो मूव नहीं कर सकता, तो वो इस एक ये भी बहुत बड़ा इसके लिए रीज़न हो सकता है। एंड देयरफॉर इट इज़ नॉट दैट इज़ केपेबल ऑफ इवॉल्विंग टू रिकॉग्नाइज नोवल इन्फेक्शन थ्रेट्स ओनली ओवर मैनी जनरेशंस। और ये मैनी जनरेशंस मतलब पैथोजन की कई जनरेशंस आने के बाद में ही फिर रिकॉग्नाइज कर पाएगा, जब उसका प्लांट का इनेट इम्यूनिटी सिस्टम फिर डेवलप होगा, क्योंकि पैथोजन तो अपने स्ट्रेन्स भेजता रहता है। तो यहाँ पर जो होता है, प्लांट को टाइम लगता है कि डिजीज रेजिस्टेंस को डेवलप करने के लिए। वेरस प्लांट डिजीज रेजिस्टेंस मीडिएटेड बाय आर जीन्स, जो कि प्लांट रेजिस्टेंस जो होता है, जो कि डेवलप होता है, प्लांट डिजीज रेजिस्टेंस मीडिएटेड बाय आर जीन्स, इट इज समटाइम्स पोर्ट्रेड एज द प्लांट एडेप्टिव इम्यून सिस्टम। इसको प्लांट एडेप्टिव इम्यून सिस्टम बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कुछ some resistant gene they compose a more rapidly evolving component of the plant basal immune system than microbe associated molecular pattern receptors, but they are not an adaptive immune system in that they do not regularly undergo usual diversification and selection in the somatic cells of the individual. So जब वो नहीं evolve होते हैं and एक ही type के रहते हैं, then they may fail. So gene for gene hypothesis for disease resistance is economically important as it is used in numerous crops to confer highly effective disease resistance. The gene for gene hypothesis states that for every dominant avirulence gene in the pathogen, there is a cognate resistance gene in the host, and the interaction between the product of these genes leads to activation of host defense responses such as the hypersensitive response that asserts the growth of biotrophic fungi. Plants have many R genes. Plants के पास कई genes होती हैं, and pathogen plants have many R genes and pathogens have many AVR genes. So disease resistance is observed if the product of any R gene has recognition specificity for a compound produced due to a pathogen AVR gene. So the molecular cloning of first bacterial AVR gene was reported in 1984, the first fungal AVR gene in 1991, and the first oomycete AVR gene in 2004. ठीक है? Now, what is the difference between MAMP and an AVR gene product? What is the difference between the MAMP and an AVR gene product? Formally, the latter are named avirulence genes because they cause avirulence in presence of R genes. What is AVR gene? AVR genes cause avirulence in presence of R genes. In the absence of cognate R gene, in the presence of cognate R gene, AVR gene are often make a quantitative contribution to virulence, yet are not essential for pathogen viability
although these are not defining features. Some AVR proteins can evolve substantially or may be entirely absent from certain strains of the pathogen. ये जरूरी नहीं है कि AVR प्रोटीन्स हर एक कोई डेवलप कर सकता है, कुछ ही स्ट्रेन्स डेवलप कर सकते हैं. वेरस मैम्प्स जो होते हैं, जो क्या है, माइक्रोब एसोसिएटेड मॉलिक्यूलर पैटर्न्स जो होते हैं, दे आर द डिफेंस एलिसिटर्स दैट आर इवोल्यूशनरी स्टेबल. ये हमेशा रहते हैं. यानी AVR जीन्स तो हर स्ट्रेन टू स्ट्रेन वेरी कर सकते हैं, लेकिन मैम्स जो होते हैं ये एक स्टेबल कैरेक्टर है. फॉर्मिंग अ कोर कॉम्पोनेंट ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट कैन नॉट बी सेक्रीफाइस्ड और इवन ऑल्टर्ड मच विदाउट सीरियसली इम्पेयरिंग वायबिलिटी. The term MAMP is increasingly used in place of PAMP because it lends greater accuracy to our thinking. Many microorganisms carry these defense eliciting molecules, yet are not pathogens or are not pathogens of many of the hosts that can detect their MAMPs. I repeat again, many microorganisms carry these defense eliciting molecules, yet are not pathogens of many of the hosts that can detect their MAMPs. A plant normally grows in the presence of hundreds of microbial species, including many non-pathogen microorganisms, that it would seemingly be counterproductive to defend against. One can postulate that microorganisms must reach a critical mass in the plant. तो अब ये तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के प्रेजेंस में, नॉट जो पैथोजन है उसके प्रेजेंस में भी प्लांट सिस्टम तो डेवलप कर रहा है. सो वन कैन पोस्टुलेट दैट माइक्रो ऑर्गेनिज्म मस्ट रीच अ क्रिटिकल मास इन द प्लांट इंटीरियर बिफोर द इम्यून सिस्टम इज स्ट्रांगली एक्टिवेटेड. दैट इज smaller primary external epiphytic microbial population are usually less potent at inducing pathogenicity related PR proteins, gene expression and other active defenses. So कुछ तो उसके बिफोर एक्टिव होने से पहले से वो जब डेवलप कर जाते हैं, सो दे आर यूजुअली लेस पोटेंट एट इंड्यूसिंग PR जीन एक्सप्रेशन एंड अदर एक्टिव डिफेंसेस. The tissue specificity was suggested by a recent study in which stomata closure was discovered as a plant defense against bacterial infections. Purified MAMPs triggered stomata closure and bacteria did as well, but only when they swarmed around the stomatal opening. So apparently a threshold level of MAMP must be present before the response is activated. तो पहले MAMP को सिक्रीट हो जाना चाहिए बिफोर द रिस्पॉन्स, तो उसकी प्रेजेंस में ही वो रिस्पॉन्स दे पाएगा. The purified MAMPs, they triggered stomata closure and bacteria did as well, but only when they swarmed around the stomatal. जब stomatal opening के चारों तरफ हुए तो वो बंद हुए when they came, so there it was triggered. So apparently a threshold level of MAMP must be present before the response is activated. वो रिस्पॉन्स को एक्टिवेशन के लिए एक हमें लेवल ऑफ MAMP चाहिए होता है. Now, how the AVR genes are maintained by the pathogens? Many effectors were first identified based on the avirulence activity. Many effectors were first identified based on the avirulence activity. These were appropriately called AVR genes since the R gene mediated activity induces defense that prevent virulence. However, it was widely assumed that effectors must contribute in some way to pathogen fitness, for example, by contributing to virulence on a susceptible host. अब ये इविरेलेंस कहाँ पर इविरेलेंस और इविरेलेंस कहाँ पैटर्न मिलता है? ससेप्टिबल होस्ट में विरुलेंस कंट्रीब्यूट करता है ना इविरेन जी. तो टुडे द विरुलेंस रोल ऑफ मेनी इफेक्टर्स इज वेल एस्टैब्लिश्ड. इफेक्टर जीन्स वे फर्स्ट आइसोलेटेड एज एविरेलेंस. पहले तो ये एविरेलेंस जीन्स की तरह से आइसोलेट है बाय स्क्रीनिंग बैक्टीरियल जीनोमिक लाइब्रेरीज फॉर जीन्स दैट कन्वर्ट द विरुलेंट बैक्टीरिया टू एविरेलेंस. A powerful clue to effector biology emerged when the first R genes were cloned and found to encode cytoplasmically localized proteins. What is the HR response? अब HR response एक robust defense response है. आप लोगों ने बहुत सुना होगा what is the hypersensitive? It is a robust defense response which is frequently associated with R gene mediated resistance. ये R gene mediated resistance से
रिलेटेड है एंड इंक्लूड्स द डेथ ऑफ द प्लांट सेल्स लोकल टू द साइट ऑफ इन्फेक्शन. मतलब जैसे ही जब वो आता है इन्फेक्शन पे तो ये सेल डेथ हो जाती है. सो HRP म्यूटेशन डिसरप्टेड द ability of phytopathogenic bacteria to cause this hypersensitive response on the resistant host and pathogenesis on the susceptible host, providing evidence that avirulence and virulence activities of vectors are fundamentally related. I think you need to understand this line again. ये जो HRP म्यूटेशंस होते हैं, मतलब ये जो हाइपरसेंसिटिव रिस्पॉन्स के जो रिलेटेड जो इफेक्ट्स से the mutation disrupted the ability of pathogenic bacteria to cause the hypersensitivity. तो जिनने hypersensitive response as a result जो hypersensitive response हुआ था on the resistant host, अगर उसे mutation हो जाता है तो वो मैच नहीं कर पाते. जब वो मैच नहीं कर पाते तो क्या होता है, avirulence की जगह क्या हो जाएगा, virulence, providing evidence that avirulence and virulence ये related activities हैं. So two major breakthrough led to an appreciation that bacterial effectors are active inside the cells of the host effector proteins expressed directly inside the host cells, frequently possessed avirulence activity similarly to that observed when they are expressed by the pathogen, and some of the proteins which are encoded by HRP genes. HRP genes कहाँ से आते हैं, from a pilus. HRP genes form a pilus which is capable of secreting HRP genes form a pilus capable of secreting bacterial encoded proteins into the extracellular matrix. This HRP pilus is now called the type 3 secretion system and is known to be central to the virulence to the numerous bacterial pathogens of plants and animals. So therefore this results lead to the hypothesis that subsequent confirmation that type 3 effector proteins, as they are now called, can be delivered via the type 3 system from the type TTS system from the bacteria into the cytosol of plant cells where they contribute to the virulence. अब हम यहाँ तक तो समझ में आ गए कितने टाइप के इफेक्टर्स हैं, कितने टाइप के हम लोग ये समझ चुके हैं कितने टाइप के इफेक्टर्स हैं, कैसे ये बनते हैं, कहाँ कहाँ ये जाते हैं, कैसे इनका एक्शन और रिएक्शन होता है प्लांट सिस्टम पे. अब हमारा दूसरा पार्ट आता है कि जहाँ पर इन इफेक्टर्स को रिकॉग्निशन कैसे होती है. ओके, सो रिकॉग्निशन ऑफ इफेक्टर्स बाय आर प्रोटीन्स, और हमने कई प्रकार के जीन्स भी पढ़ लिए हैं. सो मैम्स कैन बी रिकॉग्नाइज्ड बाय डायरेक्ट इंटरेक्शन विद द डिफेंस रिसेप्टर. दिस MAMs, they can be recognized by direct interaction with the defense receptor. Similarly, it was widely hypothesized that cytosolic R proteins would serve as receptors. जो cytosol means जो cytoplasm में जो R proteins होते हैं, they will serve as receptor which will directly interact with the intracellular effectors. Okay. Indeed, it appears true in number of cases. However, in many cases, direct interaction between effector and R protein does not explain effector detection. ठीक है, जो डायरेक्ट इंटरेक्शन बिटवीन इफेक्टर एंड आर प्रोटीन डज नॉट एक्सप्लेन द इफेक्टर डिटेक्शन. सो एक ऑल्टरनेटिव मेथड और है. ये कई प्रकार के मेथड्स आएंगे गार्डापैथी से, जो मैकेनिज्म ऑफ कैसे हम लोग को, ये भी एक पार्ट हमें पढ़ना है जिसमें कि हमें ये समझने की कोशिश करनी है कि कितने तरह के मेथड्स हैं जिसके द्वारा हमारे होस्ट में ये प्रोटीन्स और ये सब जाते हैं. इसको भी हम पढ़ेंगे. अभी मैं इसको पार्ट 1 तक हमें इसको फिनिश करके देन आई विल कम नेक्स्ट टू द पार्ट 2 विथ सम मोर इंफॉर्मेशन. सो आई टेक little time, I take a break and then we'll start studying about the part 2. So we have understood what is this actually. So now we are coming to we'll come to part 2 where we are going for the recognition of effectors by the R proteins. So I take a break at this moment and
So now, before going further, I want to show you one very important diagram where you can really understand what is happening when a bacterium is coming to the plant system and it attacks it. This is a figure where taken from a very important article. A bacterium begins playing its harp upon contacting the host. यानी ये जो बैक्टीरिया है ये आ रहा है अपने होस्ट लीफ के ऊपर. आप देख सकते हैं यहाँ पर लीफ के ऊपर बैक्टीरियम आ रहा है और यहाँ पर ये हार्प एक एक्चुअली देखा जाता है कि इंस्ट्रूमेंट होता है जो हार्प की तरह से उसको बोलते हैं हार्प. तो हम लोग बोलते हैं ना हार्प जीन्स, HRP जीन्स और ये सब बोलते हैं. तो ये सब जो जीन्स हैं ये एक तरह से जैसे कहते हैं फ्लूट की तरह से इसमें वेव्स आने शुरू हो गई हैं. तो ये वेव्स देना शुरू कर देता है कब जब ये लीफ पे आ रहा है. तो ये जब आते हैं तो जो AVR जीन्स होते हैं, जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं कि AVR जीन्स होते हैं, दीज AVR जीन्स इफ़ दे आर गोइंग टू द रेजिस्टेंट लीफ तो वहाँ पर हाइपर सेंसिटिव रिस्पॉन्स कर देते हैं. जब ये आते हैं डिजीज़ मतलब जहाँ पे ये ससेप्टिबल लीफ पे आते हैं तो यहाँ पर क्या कर देते हैं डिजीज़. तो बेसिकली ये होता क्यों है, ये किस कारण से होता है. यहाँ आप देखेंगे कि इस प्लांट सेल में जब AVR जीन यहाँ पर जब जाती है, यहाँ पर R जीन है. जब ये R जीन है तो जब ये AVR जीन, ये जो हॉप जीन है जो आया है AVR के, जो हॉप मतलब ये पूरा एक ग्रुप ऑफ जीन्स आया है और जो कि एविरुलेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल है. तो AVR प्रोटीन्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है. और जो प्रोटीन्स है HOP जो ये प्रोटीन्स हैं जो कि रिस्पॉन्सिबल हैं फॉर हाइपर सेंसिटिविटी एंड दीज आर द AVR जीन्स. व्हेन दे आर कमिंग टू दिस हियर यू कैन सी दिस AVR here. So when here it is this no, so it will if it is a resistance here and if they match each other then what happens, resistant leaf and hypersensitive response हो जाता है. ठीक है, ये एक्चुअली में ये है प्लांट सेल्स के लिए. और ये प्लांट सेल्स के लिए हम जब देख रहे हैं कि यहाँ पर AVR है और यहाँ पर R जीन नहीं है. ठीक है, तो इट इज़ विदाउट एनी आर मैकेनिज्म, इट इज़ विदाउट एनी मैकेनिज्म. और ये टाइप 3 SS इधर आ गया है, इसने अपना रिलीज भी कर दिया है फैक्टर. लेकिन जब इसकी एब्सेंस में क्या हो गया, यहाँ पर डिजीज़ डेवलप हो गई है. तो ये भले ही आपके ये सब पूरा ये सिस्टम ये चला जाता है तो इसके पीछे ये लिखा है कि बैक्टीरियम बिगिंस प्लेइंग इट्स हार्प अपॉन contacting the host, for example a leaf. This leads to active expression of HRP, HRC genes which enable the bacteria to assemble a molecular syringe called a type 3 secretion system. ये है क्या है, ये बनाता है ना टाइप 3 सिक्रेशन सिस्टम. एक तरह का वो मॉलिकुलर सिरिंज कहते हैं इसको, हम कहेंगे मॉलिकुलर सिरिंज मीन्स मॉलिकुलर पैटर्न है. दिस एपरेटर डिलीवर्स मल्टीपल विरुलेंस. क्या ये डिलीवर करता है, मल्टीपल विरुलेंस पैटर्न्स इफेक्टर्स एनकोडेड बाय हॉप एंड AVR जीन. सो हॉप और AVR जीन से जितने भी जो इफेक्टर्स हैं उनको वो सिक्रीट करता है इसके अंदर inside the plant. So the plant host is altered by the tunes. तो plant host जो होता है वो altered by the tunes emerging from the harp HOP AVR nodes through its R protein receptors. ये जो R प्रोटीन ये यहाँ पर जो है इसके वो जो ये R जो है ये क्या है इसके, ये एक तरह के ये बोलते हैं कि दे आर द रिसेप्टर्स. दे आर व्हाट आर दे, दीज आर प्रोटीन्स आर द रिसेप्टर्स. दे आर द मॉलिकुलर ईयर्स. जैसे हम उसको कह रहे हैं मॉलिकुलर सिरिंज, इनको क्या बोलते हैं, ये मॉलिकुलर कान है, मतलब ये इसके कान हैं. पत्ते के अंदर जो रेजिस्टेंस के वो कान है विच इज़ प्रेजेंट ओनली इन द सेल ऑफ द रेजिस्टेंट लीफ. जिसमें रेजिस्टेंस होगा उसी में ही ये कान होंगे क्योंकि वो सुन सकता है, वो पता लगा सकता है कि भाई हाँ इन्फेक्शन हो रहा है. एंड एक्टिवेट्स वेरियस मैकेनिज्म लीडिंग टू रेजिस्टेंस. फिर क्या होता है यहाँ पर ये एक्टिविटी हो जाना शुरू हो जाती है, यानी कि एक्टिविटी स्टार्ट हो जाती है, मैकेनिज्म स्टार्ट हो जाता है which leads to resistance which is often phenotypically expressed in the form of hypersensitive response. In the absence of R protein जो effective detection does not occur. तो क्या जब R proteins नहीं होती तो डिटेक्ट करने के लिए कुछ भी नहीं होता है ना, ये है तो सही यहाँ पर लेकिन डिटेक्ट करने के लिए कुछ है नहीं. तो देयरफॉर क्या होता है, जो इसमें डिजीज़ डेवलप होती है. नीचे वाले पत्ते में जो हम देख रहे हैं कि वहाँ पर डिजीज़ डेवलप हो जाती है और यहाँ पर इधर देखिए आप, इधर डिजीज़ रहती है और वो किस तरह से रिस्पॉन्ड करती है, हाइपर सेंसिटिव रिस्पॉन्स के उसमें करती है. ठीक है, सो ये हमने एक तो ये समझ लिया कि HRP जीन्स या HOP ये सब जो जीन सिस्टम है, ये HRP जो हाइपर सेंसिटिव रिस्पॉन्स होता है उसके से हमारा जो हाइपर सेंसिटिव रिस्पॉन्स में हमारे ये सब सिस्टम्स काम करते हैं. सो ये इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी कैन अंडरस्टैंड ऑल दिस.
अब हम आगे शुरू करते हैं कि कैसे मैकेनिज्म होता है कि बैक्टीरियल इफेक्टर्स को प्लांट सेल्स में कैसे जाते हैं। इतना हमने अभी एचआरपी जीन्स और उसके बारे में जानकारी ली कि कैसे जब वो जीन्स आ जाते हैं, जब एवीआर जीन्स जाते हैं, जब एचओपी जीन्स जाते हैं, जब उसमें जाते हैं, लेकिन अगर एब्सेंस में नहीं होता तो कैसे, लेकिन उसका मैकेनिज्म क्या है जो कि हम लोगों ने एक पहले पढ़ चुके हैं, लेकिन इसके मैकेनिज्म हम मॉलिक्यूलर पैटर्न में पढ़ेंगे। फॉर अ पैथोजन टू सर्वाइव एंड मल्टीप्लाई इट प्रोड्यूसेस इफेक्टिव मॉलिक्यूल्स टू ऑब्टेन न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम इट्स होस्ट प्लांट एंड कल्टिवेट द राइट इन्वायरमेंट इन विच टू एस्टेब्लिश। तो यहाँ पर इनका क्या रोल है, ये राइट इन्वायरमेंट क्रिएट करते हैं। फाइटोपैथोजेनिक बैक्टीरिया के जो सिस्टम हैं, सेवरल सिक्रीशन पाथवेज हैं, ये इफेक्टिव मॉलिक्यूल्स को एक तरह से ट्रांसलोकेट करते हैं, एक तरह से ये ट्रांसपोर्ट करते हैं आइदर इनटू द इंटरसेल्युलर स्पेसेस या डायरेक्टली टू द होस्ट सेल्स। यहाँ तक तो हमें पूरा क्लियर हो गया है। ये तो सारी चीज़ें एपोप्लास्ट और साइटोप्लास्ट, ये सारी चीज़ें समझ में आ चुकी हैं। दीज पाथवेज, हम अभी ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया प्लांट से रिलेटेड बैक्टीरिया के बारे में बात कर रहे हैं। दीज पैथो और उसके डिफरेंट जीन्स हमने पढ़ लिए, उसके कौन कौन से डिफरेंट जीन सिस्टम है ये भी पढ़ लिए। अब ये जो दीज पाथवेज जो होते हैं ये अपने कॉम्प्लेक्सिटी में डिफर क्यों करते हैं, क्योंकि इनको डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोटीन्स को ट्रांसपोर्ट करना पड़ता है, कहाँ से, साइटोसोल्स टू आउटसाइड द बैक्टीरिया, ये भी समझ लिए हम लोगों ने। सो अब जो हम इधर आ रहे हैं कि टाइप 1 एंड टाइप 2 पाथवे जो सिक्रीट करते हैं प्रोटीन टू द होस्ट इंटरसेल्युलर स्पेसिस, ये करते हैं इंटरसेल्युलर स्पेसिस पे। टाइप 1 एंड टाइप 2 पाथवेज क्या करते हैं, प्रोटीन्स को इंटरसेल्युलर स्पेसिस में करते हैं। लेकिन जो टाइप 3 एंड टाइप 4 पाथवेज ये क्या करते हैं, ये डायरेक्टली इनटू द होस्ट सेल करते हैं। तो ये हम पहले ऑलरेडी इसका डायग्राम देख चुके हैं और समझ चुके हैं कि कैसे वो करते हैं। व्हाट इज अ टाइप 1 पाथवे, दिस इज स्ट्रक्चरली द सिंपलेस्ट ऑफ ऑल। I think it has already been very clear in your that diagrammatic presentation if you have seen in the secretion system. It allows a direct secretion of the effectors from the bacterial cell cytosol to the external environment. ठीक है, and इसके examples क्या हैं, proteases and lipases from the soft rod pathogen Erwinia chrysanthemi. Now type 2 pathway में क्या है, it is composed of more complex secretion structure and 2 steps are required. इसमें 2 steps चाहिए होते हैं, एक तो transport to the periplasm से, इस टाइप 2 पाथवे में 2 सिस्टम चाहिए, एक हमें पेरिप्लाज्म तक ले जाना होता है, दूसरा सिक्रीट करना कहाँ तक पड़ता है, आउटर मेम्ब्रेन तक। सो इसको जो ट्रांसपोर्ट करने के लिए पेरिप्लाज्म रिक्वायर्स एन एंड टर्मिनल सिग्नल सीक्वेंस, एंड इसको एक एंड टर्मिनल सिग्नल सीक्वेंस चाहिए होता है। एंड ड्यूरिंग ट्रांसफर टू द पेरिप्लाज्म द प्रोटीन इज प्रोसेस्ड बाय अ सिग्नल पेप्टिडेज। एक सिग्नल पेप्टिडेज मतलब एक दूसरा प्रोटीन होता है जो कि इसको शेपरॉन करता है, यानी कि वो उसका संरक्षक बनता है, उसके साथ जाता है। So the intimate location in the periplasm allows the proper folding of the effector before it is secreted. Pathogen effectors involved in cell wall degradation such as pectate lyase, polygalacturonase and cellulase from Erwinia and Xanthomna species are secreted by the type 2 pathway. फिर अब हम आते हैं टाइप 3 पाथवे पे। It is also known as TTSS for type 3 secretion system. TTSS has been widely studied because it is present in disease-causing bacteria of plants and is generally not found in the non-pathogenic counterparts. Okay. Now this secretion pathways they use, please kindly understand what I am saying. The type 3 secretion system is not found in the non-pathogenic counterparts. So type 3, that's why type 3 secretion system is very important. So again it is uses what complex structures like flagella structures to interact with the eukaryotic host cells and deliver the effectors. So genes encoding the type 3 secretion, they are the hypersensitive response and the pathogenicity genes. The HRP genes are usually arranged in clusters and are located in the pathogenicity islands. So ये HRP genes से ना pathogenicity islands बनाए जाते हैं, मतलब ये सब बड़े टर्मिनोलॉजी दे रखी कि जो पैथोजेनिसिटी को कॉज करते हैं उसके छोटे सा आइलैंड बन गया, मतलब एक छोटा सा सेल के अंदर की जो पैथोजन को पैथोजेनिसिटी कॉज करे वो सब एक जगह हो जाए। और ये वो डिस्क्रीट रीजन है, ये ऑल्सो इट इज डिपेंडेंट ऑन द G+C कंटेंट फ्रॉम द ओवरऑल जीनोम एंड दे आर फ्लैंक्ड बाय इंसर्शन सीक्वेंस, bacteriophage genes and transposable elements. So these features suggest that PAIs originated from other species and that this pathogen acquired immunity, it originated from the species and that they were acquired by horizontal gene transfer. The newly acquired genetic material may confer new pathogenic and fitness traits to bacteria. The HRP genes they encode proteins that either regulate synthesis. HRP genes हमने उसको डायग्राम में समझने की कोशिश की थी कि कैसे करते, और assembly of the TTS. They are the structural components of TTSs or are extracellular, for example harpins secreted by the TTSs.
The hallmark characteristics of the TTS is it is a needle-like protruding structure. A needle-like protruding structure with a channel along which proteins travel. Its resemblance to bacterial flagella both at the structural and functional way. तो ये एकदम pointed उसके चला जाता है, pointed एकदम needle-like होता है. जो plant system है ये needle-like है. Like the type 1 pathway, secretion of effector proteins via the TTSS is one-step process with no intermediates in the periplasm. Some effectors require small acidic proteins called chaperones. मैंने अभी बताया था नहीं, संरक्षक के रूप में. chaperones का मतलब संरक्षक. टू स्टेबलाइज द, ये किस लिए बनते हैं छोटा एसिडिक प्रोटीन, ये इसके साथ इसलिए जाते हैं जिससे कि इसको स्टेबलाइज कर सकें TTSS को. Unlike type 4 secretion, TTSS effector proteins can be delivered either directly into the plant cell or into the extracellular spaces. The TTS effectors described so far are structurally remarkably diverse, suggesting that bacteria may target multiple host functions to cause disease. Okay, so they are very important. Most of these effectors were detected by using screens for avirulence functions. Now, I can show you in the figure also. अब आप इस फिगर में देख सकते हैं कि यहाँ पर ये प्लांट सेल है, ठीक है. यहाँ पर ये सेल वॉल है बैक्टीरिया का. ये यहाँ पर टाइप 1 है जो कि प्रोटीएसिस और लाइपेसिस देता है. टाइप 2 क्या देता है, पैक्टेट लाइस और सेलुलेस देता है. टाइप 3 क्या देता है, TTS इफेक्टर्स देता है. टाइप 4 क्या देता है, डिफरेंट, ये TDNA, विर D2, विर EZ एंड विर. ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ इफेक्टर्स देता है. अब यहाँ पर देखिए इनका डिफरेंस है, ये डायरेक्ट चला जा रहा है एक्स्ट्रा सेल्यूलर मैट्रिक्स में, डायरेक्टली चला जा रहा है. लेकिन टाइप 2 पे हम देख रहे हैं कि इसके दो स्टेप्स है कि पहले इसको पेरिप्लाज्म में जाना होता है, फिर ये एक्स्ट्रा सेल्यूलर मैट्रिक्स में जाता है. लेकिन टाइप 3 टाइप 4 कहाँ जा रहे हैं, सीधे होस्ट पे जा रहे हैं. दे आर गोइंग टू द स्ट्रेट होस्ट. एंड हियर समवेयर बिकॉज इट हैज़ टू बी शेपरॉन, सो एक एडिटिव और प्रोटीन जाता है उसके साथ में, और देन इट गोज इनटू द host cell. So this diagrammatic presentation clearly shows us ki how these type 4 systems are working very efficiently in the depending on the complexity of the proteins. अब जैसे कि हमने टाइप 3 में पाथवे में बताया था, तो अब जो टाइप 4 पाथवे में क्या है, इट इज़ बेस्ट नोन फ्रॉम द स्टडीज ऑफ एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेफेशंस. ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेफेशंस आप जानते हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बैक्टीरिया है फॉर द रिसर्च. दिस पाथवे इज द ओनली सिक्रीशन पाथवे विच इज डिस्क्राइब टू ट्रांसलोकेट बोथ प्रोटीन्स एंड न्यूक्लिक एसिड्स. ये एक्चुअली प्रोटीन्स भी भेजता है और न्यूक्लिक एसिड्स भी भेजता है. फॉर एग्जाम्पल विर D2 virus G2 and tDNA transfer DNA nucleoprotein complex is delivered through the type 4 pilus from Agrobacterium tumefaciens directly into the plant cell. Then type 4 secretion pathways use complex structures like conjugation structures to interact with the eukaryotic host cells and deliver the effectors. जैसे कि हमने बताया था कि उसके साथ में वो चला जाता है. तो ये जो डिफरेंट फिगर आपको पहले ऑलरेडी हमने शो कर दिया कि कैसे उसका TTS इफेक्टर्स 4 तरह के अभी जो पहले डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन में आपको शो किया. अब हम इस पे इसको देखते हैं कि भाई ये TTS इफेक्टर प्रोटीन्स आखिर में क्या क्या रोल प्ले करते हैं. तो पहला इनका रोल है, दे स्टिमुलेट एंड इंक्रीज इन pH एंड न्यूट्रिएंट कंटेंट ऑफ द प्लांट एपोप्लास्ट, making the apoplastic fluids more hospitable for bacterial multiplication. So you understand, so important that they can stimulate and increase in pH and nutrient content of the plant apoplast. मतलब plant apoplast में जाने से पहले जब ये जाते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स में, तो वहाँ के एरिया को वो ऐसे बना देते हैं जिससे कि बैक्टीरिया मल्टीप्लाई हो सके. सेकेंड, ये एक्टिवेट करता है होस्ट डिफेंस रिस्पॉन्स को थ्रू रिकॉग्निशन बाय कॉरस्पॉन्डिंग होस्ट आर प्रोटीन एविरुलेंस फंक्शन. थर्ड क्या करता है, ये इनहिबिट करता है एक्टिवेशन ऑफ होस्ट डिफेंस रिस्पॉन्सेस को विच आर सिग्नल बाय अदर TTS एविरुलेंट फैक्टर्स. फोर्थ, इनहिबिट द बेसल प्लांट रेजिस्टेंस मैकेनिज्म. मैं ये पहले ही आप लोगों को ये सब चीज़ बता चुकी हूँ. और अब ये आपको बता सकते हैं कि कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ सिक्रीटेड एंड साइटोप्लाज्मिक कंट्रोल प्रोटीन्स फ्रॉम प्लांट पैथोजेनिक बैक्टीरिया टू विरुलेंस. एक लंबी लिस्ट इसके बारे में हमारे पास जानकारी है उसको कि जो कि मैं आपको देना चाहूँगी. ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कंट्रीब्यूशन ऑफ सिक्रीटेड एंड साइटोप्लाज्मिक कंट्रोल प्रोटीन्स फ्रॉम प्लांट पैथोजेनिक बैक्टीरिया टू विरुलेंस. कितनी तरह की बैक्टीरियल स्पीशीज़ में प्रोटीन्स का काम हो चुका है बाय डिफरेंट रिसर्चर्स, और इन सब का प्रोटीन का क्या योगदान रहा है. इनका योगदान रहा है टाइप 3 सिस्टम में और विरुलेंस में. देखिए एर्विनिया एमाइलोवोरा में
प्लस पाइलस प्रोटीन है, ट्रांसलोकोन प्रोटीन्स है, कंट्रोल प्रोटीन्स है, HRPA, HRPK, HRPN, HRPJ, एंड इनका लोकलाइजेशन S एंड एसेंशियल फॉर, तो व्हाट इज दिस लोकलाइजेशन यहाँ पर XCV ये है लोकलाइजेशन C साइटोप्लाज्मिक, नॉट सॉरी आई वांट टू शो यू secreted systems है, they are secreted actually, they are essential for disease and type 3S and different. Now HRPK is secreted again homologous to HRPK1 from Pseudomonas, ये control protein, ये different types of proteins हैं जो कि Erwinia amylovirus, उसी प्रकार से Pseudomonas series ने HRPA, HRPK1, HRPZ1, HRPW1, these are the different what proteins which have been secreted and translocated and responsible for diseases. Then Rhizoctoneum में भी पाइलस प्रोटीन, ट्रांसलोकोन प्रोटीन, कंट्रोल प्रोटीन, मतलब ये जो कंट्रोल प्रोटीन्स ये डिजीज़ के लिए रिक्वायर होती है, मतलब कभी कभी होती है कभी कभी नहीं होती है, दे आर हेल्पिंग ऑल्सो, दे may be important for disease development, they may be chaperones also, they may be secreted, they may be essentials also. Then Xanthomonas species, पाइलस प्रोटीन, ट्रांसलोकोन प्रोटीन एंड कंट्रोल प्रोटीन, डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोटीन सिक्रीट होते हैं एक्चुअली में इसमें, ठीक है. तो C साइटोप्लाज्मिक नॉट एनालाइज, NT इज नॉट ट्रांसलोकेटेड, S इज सिक्रेटेड, NT इज ट्रांसलोकेटेड हियर. So this is a table which is another very important table, which is contribution of secreted and cytoplasmic control proteins from the plant pathogenic bacteria to virulence. You can see in various review articles. Okay, so हम एक और डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन में देख सकते हैं कि कैसे इफेक्टिव बायोलॉजी में डिफरेंट पाथवेज का, पैथोजन इफेक्टर्स का क्या रोल रहा है. यहाँ देखिए AVR प्रोटीन है, यहाँ पर A है, A, B, C, ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ यहाँ पर डिफरेंट टाइप ऑफ सिस्टम्स हैं एक्चुअली में, जो कि कुछ जो टाइप TTSS इफेक्टर्स होते हैं ये मॉडिफाई कर देते हैं प्लांट टारगेट प्रोटीन्स को. What do they modify the proteins inside the plant system में and उसको स्टिमुलेट कर देते हैं, डिफेंस सिस्टम को स्टिमुलेट कर देते हैं. आप समझ रहे हैं कि ये जाते हैं अंदर और वो जो प्रोटीन्स हैं उनको टारगेट कर देते हैं, टारगेट करके वो उसको या तो स्टिमुलेट कर देते हैं या वो इंडक्ट कर देते हैं डिजीज़ को. तो ये इस प्रकार का जो हम लोगों ने एक आपको अभी जो पहले भी बताया था डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन में, जो कि किस तरह से हम इसको समझ सकते हैं कि ये पैथोजन इफेक्टर है, AVR प्रोटीन है, इधर ये R प्रोटीन है, पैथोजन टारगेट कॉम्प्लेक्स रिकॉग्निशन है. तो A टाइप में क्या हुआ यहाँ पर, इस A वाले मैकेनिज्म में क्या हुआ, A वाले पाथवे में हम यहाँ देख रहे हैं कि जब ये AVR प्रोटीन है, जब ये यहाँ जा रहा है तो ये कन्फॉर्मेशनल चेंज है, मतलब यहाँ पर प्रोटीन को मॉडिफाई भी कर देता है, प्रोटीन डिग्रेड भी हो जाता है. और जब ये डिग्रेड हो जाता है तो कंजर्व सिग्नल ट्रांसडक्शन और रेजिस्टेंस पाथवे क्या होता है कि कई तरह से होता है. इसका रेजिस्टेंस पाथवे जब होगा, जब यहाँ पर इसको टारगेटेड प्रोटीन जो उसको चाहिए वो प्रोटीन मिल गया तो यहाँ पर रेजिस्टेंस पाथवे आ गया. लेकिन यहाँ डिजीज़ पाथवे इसलिए आया क्योंकि जब ये इफेक्टर प्रोटीन इधर आया तो इसने क्या करा, टारगेट मॉडिफिकेशन दो तरह से इससे टारगेट किया. अगर कोई यहाँ पर प्रोटीन मिला भी तो उसको टारगेट किया तो मॉडिफाई भी कर दिया, डिग्रेड भी कर दिया, तो डिजीज़ पाथवे आ गया. और यहाँ पर प्रोटीन R रिकॉग्निशन ये रिकॉग्नाइज हुआ, यहाँ पर इसने रिकॉग्नाइज करके ये यहाँ पर चला गया तो यहाँ पर रेजिस्टेंस पाथवे आ गया क्योंकि वहाँ पर रिकॉग्निशन फैक्टर उसको मिल गया, उसको रिकॉग्नाइज करके. लेकिन यहाँ पर जो रिकॉग्निशन फैक्टर था वो था तो सही, लेकिन इट वाज नॉट एक्टिव और उसको क्या करा, उसको मॉडिफाई कर दिया, डिग्रेड कर दिया. तो यानी कि पैथोजन टारगेट रिकॉग्निशन, ये जो पैथोजन इफेक्टर होता है ये या तो रिकॉग्नाइज भी कर लेता है, नहीं रिकॉग्नाइज करता है तो ये उसको ब्रेक कर देता है, ब्रेक करके खुद अपने आप को मॉडिफाई कर लेता है, अपने आप को मॉडिफाई करके या तो मॉडिफाई कर देता है, डिग्रेड करके डिजीज़ हो जाती है. तो डिजीज़ पाथवे का मतलब वो उसके भलाई के लिए, खुद की भलाई के लिए होता है. लेकिन यहाँ पर तो ये होता है कि नेचुरली इट विल डिग्रेड, लाइक द बैक्टीरियल कैनॉट मल्टीप्लाई. सो when interaction this involving this Pseudomonas syringae and the target proteus Thaliana, they provide excellent examples of these possibilities. And Pseudomonas syringae, TTSS effectors, AVR PH, HHB and AVR RPT2, they are cysteine proteases whose proteolytic activity is essential for elicitation of the HR.
So HR elicitation by AVR RPT2 in Arabidopsis plants containing the corresponding resistance gene product RPS2 requires the cleavage of a plant membrane bound target protein called RN4. एक RN4 target protein होता है, तो उसको वो क्या करता है, the RN4 is complexed with the RPS2 resistance protein and cleavage of, मैंने जो आपको पहले डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन है, या तो वो डिग्रेड कर देगा, वो क्लीवेज कर देगा, और डिग्रेड करके प्रोटीन डिग्रेडेशन जब हो जाता है, जो कि हमने फिगर ए में देखा था, तो क्या होता है कि देयर इज अ चेंज इन द ओवरऑल स्ट्रक्चर ऑफ द कॉम्प्लेक्स, ठीक है, एंड इट इज थॉट टू बी डिटेक्टेड बाय RPS2 एंड दस RPS2 मीडिएटेड रेजिस्टेंस रिस्पॉन्स इज सिग्नल। तो इस तरह के ये रिएक्शंस और एक्शंस होते हैं, यानी कि आपको ये अच्छी तरह समझने की जरूरत है कि ये AVR genes में they are not only responsible for the virulence but they are also responsible for the modification of the protein modification. They modify the protein. These studies also show that the effective modification of plant target protein is required for avirulence function. Sometimes it is also required, so if modified, so then it gets the, there are two types of reaction, maybe you get resistance also. So this is requirement for modification by proteolytic cleavage or phosphorylation in the pathogenicity functions has not been developed. So ये थोड़ा रिसर्च की बातचीत है, मेरे को लगता है कि आपको I think I have tried to make you understand that how different these concepts have been developed in the effector biology or in the effectors. So many effectors are delivered in the host cells. It is important. Then biotrophic fungi have evolved hostia for this purpose. One of this in fungi, it is hostere. We used to think that hostere is for nutrition, but now it is secreting the pathogen. It is also secreting the effector proteins. Other effectors act in the key effectors also act in the apoplast. This is a very important thing, that it also acts in the apoplast. Then fourth is वन इफेक्टर मैनी होस्ट टारगेट्स, कि प्लांट पैथोजन इफेक्टर्स जो होते हैं केवल वन ही होस्ट टारगेट नहीं करता है, ये मल्टीपल टारगेट कर सकता है. मैनी इफेक्टर्स दे सप्रेस द प्लांट इम्यूनिटी, की एक ये भी है कि कई इफेक्टर जो है प्लांट इम्यूनिटी को सप्रेस कर देते हैं. और सम इफेक्टर्स दे ऑल्टर प्लांट बिहेवियर एंड डेवलपमेंट, कुछ प्लांट बिहेवियर को और डेवलपमेंट को भी डिफरेंट कर देते हैं. Then there is a molecular mimicry by effectors, कि effectors they are encoded by pathogen genes, जो कि pathogen genes से encoded होते हैं. They function in a plant cellular environment and therefore they could have selected to mimic plant में. कई बार ये plant molecules की तरह से mimic कर लेते हैं, और तब क्या होता है कि many effectors produce some analogs which are similar to the plant hormones. And for example, coronatine, which is a toxin which is secreted by several pathovores of Pseudomonas syringae, that is a structural and functional mimic of the plant hormone jasmonyl isolinic acid. So coronatine has many effects that enhance the bacterial colonization of the plants. So such, see, they can also do the plant mimicry, means plant के जैसे hormones के जैसे वो लोग mimic कर लेते हैं, और फिर वो important है. सो यहाँ तक तो पढ़ लिया कि ये डिफरेंट इफेक्टर्स, और हमने डिफरेंट प्लांट इफेक्टर्स कैसे होते हैं, साइटोप्लाज्मिक, एपोप्लास्टिक, और किस तरह से इनका रोल होता है. वी हैव स्टडीड द इफेक्टर बायोलॉजी. अगेन रिपीटिंग दैट हाउ द होस्ट पैथोजन इंटरेक्शन ऑफ द बैक्टीरियोलॉजी और इन द बैक्टीरिया अकर्स थ्रू बाय टाइप these type secretion, different types of secretion systems. Okay, so how bacterial pathogen cause disease crop, we have already studied in the different TTS systems. So there are two main, अब इसके जो हमने इतना पढ़ा, इसके two major outcomes हैं in plant pathogen bacterial plants से. If the host contains a resistant gene corresponding to the specific bacterial effector protein, तो it recognizes the effector and immediately activates the R protein dependent defense response that limits the growth and spread of the invading pathogen. Conversely, अगर उल्टा उसके रिवर्स देखा जाए, तो if the host is susceptible, तो effector will act as a virulence factor which will allow the pathogen to multiply to promote disease development. So इस तरह का जो कॉम्प्लेक्स होगा जो बैक्टीरियल प्लांट इंटरेक्शन का, इसको डिफाइन करते हैं मॉलिकुलर लेवल पे by the presence or absence of the functional alleles of the, इसमें क्या नहीं है, इनमें एलील्स नहीं है, फंक्शनल एलील्स ऑफ बैक्टीरियल इफेक्टर्स एंड प्लांट प्रोटीन्स के बेसिस पे. रीसेंट मॉलिकुलर इन्वेस्टिगेशन हैव डेमोन्स्ट्रेटेड दैट T3SS इफेक्टर्स आइदर इंडिपेंडेंटली और करेक्टिवली
टारगेट डिस्टेंट प्लांट सिग्नलिंग पाथवेज, ये डिफरेंट प्लांट सिग्नलिंग पाथवेज को टारगेट करता है एंड सप्रेस करता है बेसल एंड आर प्रोटीन मीडिएटेड इनेट इम्यूनिटी, ठीक है। सो फॉर एग्जांपल T3SS इफेक्टर्स दे इंटरफेयर विद आर प्रोटीन एक्टिवेशन, ओके। T3SS इफेक्टर्स किसको इंटरफेयर करते हैं? आर प्रोटीन एक्टिवेशन को, रिप्रेस सैलिसिलिक एसिड मीडिएटेड डिफेंस पाथवे को by activating jasmonid signaling pathway, inhibit the programmed cell death, suppress the plant cell wall remodeling. Although the avirulence functions of bacterial effector proteins have been well documented, the virulence function of effectors is not understood. इसके बारे में अभी हमें नहीं पता है, लेकिन mutations in individual effector genes में इससे हमें ये पता जानकारी मिलती है कि they have little or no effect on bacterial virulence. These findings demonstrate that the difficulties These findings demonstrate the difficulties of the bacterial genetics as sole tool to study the virulence function of type 3 effectors in plants and illustrate a need for defining the global effects. अब genes encoding several type 3 secretion system को जो है it reside on the, मैंने अभी आपको बताया था pathogenicity island बना लेता है। विछा क्या होता है ये pathogenicity island जो अभी हमने term लिया था? These are the inserted DNA segments within the chromosome. What are these pathogenicity islands? Pathogenicity islands are the inserted DNA segment within the chromosome that confer upon the host bacterium a variety of virulence traits such as the ability to acquire iron and to adhere to or enter the host cells. Many of these segments of DNA appear to acquire in a single step from a foreign source. The ability to obtain complex virulence traits in one genetic event rather than by undergoing natural selection for many generations, it provides a mechanism for sudden radical changes in bacterial host interactions. Now, these type 3 secretion systems and the pathogenicity island must have played critical roles in the evolution of the known pathogen likely to lead to the emergence of novel infectious disease in future. तो ये तो अपना सबसे पहले तो हो गया टाइप 1 कैसे होता है, सीधे जो जाता है एकदम और दे देता है। ये 2 मेथड से जाता है, 2 स्टेप्स में जाता है। ये है अपना टाइप 2 का, ये टाइप 3 का है। कैसे इसको जाना पड़ता है? इट हैज़ टू पास थ्रू द डिफरेंट लेयर्स, ओके, एंड देन इट गोज टू द होस्ट सेल मेम्ब्रेन. नाउ वी कम टू द अनदर डायग्राम हियर. वी सी हियर बैक्टीरिया के ये इफेक्टर्स हैं, ठीक है, और ये टाइप 3 सिस्टम है, टाइप 3 सिस्टम का है। ये रेजिस्टेंट होस्ट है इधर। यहाँ पर हम देखते हैं कि इसके जो इफेक्टर्स हैं इसको रिकॉग्निशन यहाँ पर हो गई। तो यहाँ पर आर प्रोटीन डिपेंडेंट डिफेंस रिस्पॉन्स हो गया क्योंकि इसने इसको रिकॉग्नाइज कर लिया। इन आर प्रोटीन ने इनको रिकॉग्नाइज कर लिया। आप देख रहे हैं ना यहाँ पर, तो ये वाइट स्ट्रक्चर्स है, इधर ये रेड स्ट्रक्चर, क्योंकि ये जो आर प्रोटीन थे इसमें मर्ज हो गए तो ये बन गया रेड स्ट्रक्चर। ये इफेक्टर्स इसमें आ गए, ये जो इफेक्टर्स यहाँ पर थे ये इधर आ गए, ये रिकॉग्नाइज हो गए, ये यहाँ पर डिफेंस रिस्पॉन्स दिया और उसके कारण क्या हुआ, यहाँ पर रेस्ट्रिक्टेड ग्रोथ हो गई, ठीक है। तो ये हो गया रेजिस्टेंस मैकेनिज्म। अब हम आते हैं ससेप्टिबिलिटी पे। यहाँ बैक्टीरिया के ये आया है, ये टाइप 3 सिक्रीशन सिस्टम हो गया, ये अपना ससेप्टिबल होस्ट है। यहाँ पर कोई ऐसा स्पेसिफिक आर प्रोटीन नहीं है, तो क्या है, इसने रिकॉग्नाइज नहीं किया। जब रिकॉग्नाइज किया तो कोई डिफेंस रिस्पॉन्स हुआ ही नहीं और कॉलोनाइजेशन एंड स्प्रेड ऑफ बैक्टीरिया हो गया और यहाँ पर क्या हो गया, डिजीज़। ये इसको हम फाइनली आपको समझा रहे हैं कि जिससे कि मॉडल ऑफ होस्ट पैथोजन इंटरेक्शन आप 10 बार, आई थिंक आई हैव रिपीटेड मेनी टाइम्स टुडे व्हाइल एक्सप्लेनिंग यू, सो यू कैन नाउ अंडरस्टैंड व्हाट हैज़ हैपेंड इन द होल सिस्टम। अब ये हमने इधर देखा बैक्टीरिया में इंट्रासेल्युलर ये इफेक्टर्स हैं, ये इंट्रासेल्युलर इफेक्टर्स हैं, ठीक है। ये पैथोजन एसोसिएटेड मॉलिक्यूलर पैटर्न लाइक फ्लैजिलिन है, लाइपोपॉलीसैकेराइड एलोंगेशन फैक्टर, हमने कई बार ये भी बताया ना कौन से होते हैं, पैम्स ये होते हैं, ये वाले यहाँ पर ये इसमें आए। अब ये इफेक्टर्स इधर आए, इधर ये आर प्रोटीन है, इसने इसको रिकॉग्नाइज किया, तो यहाँ पर रिकॉग्नाइज किया, तो यहाँ बैक्टीरियल इफेक्टर्स पैम्स फिजिकली इंटरेक्ट और बाइंड विथ होस्ट प्रोटीन्स। किससे बाइंड किया, होस्ट प्रोटीन से। वो होस्ट प्रोटीन कौन कौन से हैं, माइटोजन एक्टिवेटेड प्रोटीन काइनेज, FLS2 और EFR, ये सब हैं प्रोटीन्स हैं, मतलब डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोटीन्स है ना, कौन से प्रोटीन से मिक्सअप हो रहे हैं। और सप्रेशन ऑफ पैम ट्रिगर्ड इम्यूनिटी हुआ और इफेक्टेड ट्रिगर्ड में अनलिमिटेड ग्रोथ एंड स्प्रेड। जहाँ पर सप्रेशन हो गया तो अनलिमिटेड ग्रोथ एंड स्प्रेड ऑफ बैक्टीरिया हो गया। जहाँ पर सप्रेशन ऑफ पैम, यहाँ से न्यूक्लियस से नो सिग्नल फॉर प्रोमोटर एक्टिवेशन डिफेंस, यहाँ पर कोई से सिग्नल नहीं आया,
सिग्नल नहीं आने से डिजीज हो गई। यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ आर प्रोटीन ये हुआ, रिकॉग्नाइज हुआ, पैटर्न रिकॉग्निशन रिसेप्टर आने के बावजूद भी क्या हुआ, यहाँ पर डिजीज हो गई। सो ये है मॉडल होस्ट पैथोजन इंटर बाय इन्फेक्टर्स एंड पैम्स विच आर लीडिंग टू डिजीज डेवलपमेंट ससेप्टिबल। इफेक्टर्स और पैम्स प्लेइंग डायरेक्ट रोल इन सप्रेसिंग होस्ट इम्यून सिस्टम। जो इफेक्टर्स और पैम्स होते हैं दे प्ले डायरेक्ट रोल इन सप्रेसिंग होस्ट इम्यून सिस्टम। दिस इंटरेक्शन इज कॉल्ड इफेक्टर ऑफ पैम ट्रिगर्ड ससेप्टिबिलिटी। जो ससेप्टिबिलिटी इंड्यूस करती है उसको हम बोलते हैं इफेक्टर पैम ट्रिगर्ड ससेप्टिबिलिटी, नॉट पैम ट्रिगर्ड इम्यूनिटी। सो ये हो गया पैम ट्रिगर्ड ससेप्टिबिलिटी। जो आए रिकॉग्नाइज नहीं हो पाए, जब रिकॉग्नाइज नहीं हो पाए तो उन्होंने उसको यहाँ पर भेजा। सो दिस इज नाउ वी आर थ्रू विद द डिफरेंट काइंड्स ऑफ सिस्टम्स। So dear students, I have tried to finish most of the points which are related to the host pathogen interaction in bacteria as well as in some few aspects of the fungi. Now there is another important portion left which is related to the mechanism actually. These chapters actually, this subject is quite an extensive or very detailed, but I have tried to make it concise, though it is not very concise. It might be looking you आप लोगों को बहुत ज़्यादा इलेबरेट लग रहा होगा, बहुत डिटेल लग रहा होगा, बट आई थिंक इट वाज नॉट इजी टू कंसाइज एक्चुअली बिकॉज you need to understand lot of things now. But one more aspect is left actually where I really wanted to explain was that what is that basic mechanism when all of these patterns when they meet each other, means I mean to say is that when we see that they are different actually, there are different models of direct and indirect models are there actually for gene hypothesis. And what are the different mechanism actually, there are steps in the mechanism of this plant defense reactions actually. So what is a active basic resistance, and what is even if we don't understand those types of things, these things are left actually. What is what are the different kinds of elicitor receptor model actually, how they join together and how do they interact with each other. So this is another aspect of study, and I think it will take another 30-40 minutes in this lecture. So this lecture based on the different models actually, there are 4 models, direct and indirect models, and these models I will take separately to this lecture. Maybe by tomorrow you may get this lecture, or by tomorrow evening or day after. So there we can understand that what are the different ion exchange model, dimer model, suppress receptor model, and joining of the receptor and the effector model. So how these effector and receptors they join together and then they give the pathogen defense in the plants, how this defense system is occurring and how the defense system is breaking. So this type of lecture I will take separately, and this maybe again I'll repeat maybe tomorrow or day after. Thank you very much. Hope you could understand, and hope you can for you it is for all of you it may be very interesting, but definitely these are very interesting chapters because you can consult many review papers are available on the Google, and these from this taken the different references, different tables, different figures have been taken from those different references, and all those references together I'll make a separate list actually. One day maybe I make a separate list, and then maybe in tomorrow's lecture I'll make a separate list of all those lectures which I have tried to compile and try to discuss with all of you. So thank you very much. Stay safe, stay home, stay healthy, and enjoy your lockdown time period in studies actually. These are very interesting subjects, very interesting. So we are really very fortunate to have a good study of plant pathology. We belong to plant pathology group, and really now I feel so happy when I try to understand so many things. And though one thing I want to say, explanation without seeing all of you is really not it makes me really sometimes very uncomfortable. But then also I'm trying, as if I'm visualizing all of you are sitting there, and whatever language I'm trying to use is like that, so that it is easy and you people can understand. Thank you very much. Thank you again. Thank you.